PhD from Jamia Millia Islamia in computer science. After completing his PhD, he started his academic career from Jamia Millia Islamia, and now he is serving as a full professor in the Department of Computer Science at Jamia Millia Islamia. He is a very good researcher, and till now he has supervised more than 15 PhD scholars, and many are under his guidance right now. And apart from guiding PhD thesis, he has executed many research projects, government research project, as well as he has executed research project from industry. So he has a very good mix of experience, you can call. Apart from that, he has Viseshwarya Young Faculty Research Fellowship in his credit, and he got it during 2016 to 2021. So it is a very prestigious fellowship which he has to his credit. Apart from that, he has published more than 100 papers in various journals of repute and presented many papers in the conferences. Apart from that, he has published and edited more than 10 books which are indexed in various reputed indexing organizations. Say, for example, they are indexed in Scopus, and many of them are indexed in SCI as well. So you can see the publication from PHI, CRC Press. So all the reputed press, he has published 10 books, and he has 10 books to his credit, I mean to say. Apart from that, he has patents as well. So what I can see from his biota, that 2 patents are there to his credit. And so you can see that he has a varied experience, no matter whether it's research, doing PhD or guiding PhD sessions, or executing projects or having patents. So he has a varied experience apart from teaching in research and guidance as well. Apart from all these things, he has a very ardent speaker, and he's very reliable, a very valuable resource person, and he has given lectures in more than 300 given talks. He has given talks in more than 300 conferences, FIPs, and FDPs. Apart from that, he has chaired many sessions in international conferences in India and abroad as well. Professor Mansaf is, as I have told you, that is very active person, not in the academia, but he has been involved in many administrative services as well. Not in the university, but at the government level, at the ministry level, he holds a lot of membership in various high-powered committee, and he is giving their administrative services as well. Apart from all these things, I am very much thankful to Professor Mansaf Sahab. Whenever we need his services, in whatever capacity, maybe in the capacity of examiner or sometime in the capacity of a resource person, every time he has obliged us, and he is always ready to our call. So I am very much thankful to Professor Mansaf Sahab, and right now sparing time to interact with the participants of the subject refresher course. And with this thank, I would like to hand over the floor to Professor Mansaf so that we can interact with him, with a request to the participant that please make it a interactive session basically. So please try to interact with the source person and make it more interesting rather than a monologue session. So, okay, thank you very much, and thank you, Professor Mansaf Sahab. And now over to you, sir. Thank you, sir. Thank you very much. Respected director, coordinator, and my dear participants, good morning to all of you. Before going to start my talk, I would like to tell you, Asim sir is my teacher and the best teacher. एक स्टूडेंट के लिए टीचर के सामने बोलना आसान बात नहीं है, और सर हमें बहुत कुछ दिया, बहुत सपोर्ट किया। आज जो कुछ भी हूं मैं सर के सपोर्ट की वजह से हूं, डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस एमयू के सपोर्ट की वजह से हूं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की वजह से। अगर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी नहीं होती, डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस नहीं होता, तो हम यहाँ तक नहीं पहुंच पाते।
तो हमें और हम सबको अपने पास्ट को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि एक पेरेंट इंस्टीट्यूशन है जहां से आपने पढ़ाई किया है, उसका बहुत वैल्यू होती है आपकी लाइफ में। और हमारे लाइफ में तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का डिपार्टमेंट कंप्यूटर साइंस का बहुत बड़ा योगदान है, कंट्रीब्यूशन है। मैं समझता हूं कि अगर वो यूनिवर्सिटी में हम नहीं जाते तो आज यहाँ तक नहीं पहुंच पाते। इवन की जामिया जो बनी है, ये भी एमयू का योगदान है। और सर ने एज ए हेड डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस को बहुत आगे बढ़ाया। जब हम लोग स्टूडेंट थे तो वहाँ पे कुछ भी नहीं था, आपसे कर सकता हूँ, लेकिन आज के डेट में आप देखेंगे तो इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्यूटर साइंस का हो गया है, हम इमेजिन नहीं कर सकते। मैं इंडिया के हर एक इंस्टीट्यूशन में गया, देखा कंप्यूटर साइंस को, लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर आई डिड नॉट सी एनीवेयर इन इंडिया, स्पेशली इन द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस। प्राइवेट में है उसकी कोई बात नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में पैसे लाना और डिपार्टमेंट को इतना फ्लोरिश करना, ग्रो करना बड़ी बात है। थैंक यू सर फॉर इनवाइटिंग मी एज ए रिसोर्स पर्सन। नाउ वी ऑल आर टीचर, so it is very difficult to teach to a teacher. So I'm not going to teach you, I'm going to share some informations. And you are from different background, so I will cover the common topic that will be helpful to each and everyone. Dear participants, आज के डेट में हम कहते हैं कंप्यूटर साइंस इज जस्ट लाइक ए सॉल्ट। किसी भी खाने में कितने अच्छा बना दीजिए और खाने में सॉल्ट नहीं होगा तो खाने का टेस्ट नहीं आता है। उसी तरह से आज के डेट में एवरी फील्ड ऑफ रिसर्च, हर फील्ड में कंप्यूटर साइंस वर्क एज ए सॉल्ट। कंप्यूटर साइंस का यूज होना ही है, चाहे कोई भी फील्ड ले लीजिए। आज के डेट में मैं कह सकता हूं कि कंप्यूटर साइंस वर्क एज ए सॉल्ट टू मेक द गुड थिंग्स in your field. Without computer science, we can't move right now. कंप्यूटर साइंस का सबसे ज्यादा जो योगदान रहा है लॉकडाउन में। सोचिए कंप्यूटर साइंस आईसीटी का अगर नहीं होता तो हम लॉकडाउन में घर बैठे होते तो कुछ भी नहीं कर पाते। तो सोचिए कितना बड़ा योगदान है कंप्यूटर साइंस का। उसके साथ साथ अब एक नया कंसेप्ट आया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। थोड़ा ब्रीफ में आपको बता दूं कि ये टेक्नोलॉजी जो है कैसे ग्रो हुआ है। तो सबसे पहले दुनिया में आया इंडस्ट्री 1.0। इंडस्ट्री 1.0 का मतलब ये कि सब कुछ मैनुअल होता था। जैसे आपने देखा होगा बैलगाड़ी है, बैलगाड़ी से सामान लेकर जाते थे और जो कुछ भी टेक्नोलॉजी था वहां पे वो सिर्फ मैनुअली हम काम करते थे। उसके बाद इस इंडस्ट्री में रेवोल्यूशन आया जिसमें आग और पानी को एक साथ मिलाया गया और बना आपका स्टीम, जिसको हम कहते हैं इंडस्ट्री 2.0। इंडस्ट्री 2.0 में मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कंसेप्ट आया। मैकेनिकल चीजें होने लगी, पंपिंग सेट है आपका, रेल है, रेल इंजन है, एक्सेट्रा। ये इंडस्ट्री 2.0 का देन है। सबसे बड़ा दुनिया में जो रेवोल्यूशन हुआ ना, दैट वाज इंडस्ट्री 3.0। अब इंडस्ट्री 3.0 क्या है कि इंडस्ट्री में एक नया कंसेप्ट को ऐड किया गया। दैट कंसेप्ट वाज कंप्यूटर साइंस। जैसे ही इंडस्ट्री 2 में 2.0 में कंप्यूटर साइंस को ऐड किया गया, दैट बिकम इंडस्ट्री 3.0। तो जैसे ही कंप्यूटर ऐड किया गया पूरे दुनिया में एक बड़ा रेवोल्यूशन आ गया और ये डिबेट का सब्जेक्ट बन गया पूरी दुनिया में। लोग कहने लगे कि कंप्यूटर को आने से लोगों की नौकरियां चली जाएगी। बहुत सारी डिबेट हुई और सच बात है कि नौकरियां गई। कंप्यूटर साइंस के आने के बाद नौकरियां सब गई, लेकिन दूसरी साइड में नौकरियां जनरेट हुई। जब भी हम नया टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं तो टेक्नोलॉजी का प्रॉस एंड कॉन्स होता है, पॉजिटिव है और निगेटिव दोनों होता है। तो एक तरफ से जो लोग कंप्यूटर नहीं जानते थे बहुत सारी नौकरी गई,
लेकिन दूसरी तरफ नौकरियां जनरेट हुई। तो एक किसी का कोट है कि जो इंसान वातावरण के अनुकूलित अपने आप को नहीं बदलता है, उसका जीवाश्म प्राप्त हो जाता है। यानी अकॉर्डिंग टू सिचुएशन यू हैव टू चेंज। अगर आप अपने आप को चेंज नहीं करते तो आप सरवाइव नहीं कर सकते। तो लोगों ने क्या किया, कंप्यूटर सीखना शुरू किया, और वहां पे सिचुएशन ऐसा है कि मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, हर ब्रांच के लोग कंप्यूटर साइंस में इन करना शुरू कर दिए। उस टाइम में जो पीजीडीसीए, डीसीपी किए हुए बच्चे थे, वो भी अमेरिका चले गए और बहुत अच्छे इंडस्ट्री में काम करने लगे। छोटे छोटे इंस्टीट्यूट बनने लगे, एसटीजी, एनआईटी, इटीसेटा, बहुत आपने देखा होगा। दैट वाज द ग्रेट रेवोल्यूशन एंड दैट वाज इंडस्ट्री 3.0। अभी तक आ रहा था ये, अब नया रेवोल्यूशन आ गया है, नया, जो आप लोगों को पता होना चाहिए। अब चल रहा है इंडस्ट्री 4.0। अब इंडस्ट्री 4.0 का मतलब कि नया कंसेप्ट को ऐड कर दिया गया। अब जाहिर सी बात, यहां भी बहुत बड़ा रेवोल्यूशन होने जा रहा है कि अब फिर लोगों की नौकरियां जाएगी, लेकिन दूसरी तरह की नौकरियां जनरेट होगी। तो इंडस्ट्री 4.0 में क्या किया गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ऐड कर दिया गया, क्लाउड कंप्यूटिंग को ऐड कर दिया गया, ब्लॉकचेन को ऐड कर दिया गया, वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी, आईओटी, इंडस्ट्रियल आईओटी, इटसेट्रा, सारे चीजों को एक साथ कंबाइन कर दिया गया। That give the birth of industry 4.0 and some additional किया गया, थोड़ा सा enhance, तो that is industry 5.0। आपने सुना होगा कि आज के डेट में डिपार्टमेंट ऑफ डेटा साइंस, डिपार्टमेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ओपन होना शुरू हो गया। जब हम लोग पढ़ते थे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो समझ में नहीं आता था, अब कोई इतना पॉपुलर नहीं था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। लेकिन आज के डेट में आप देखेंगे तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज मोर पॉपुलर। बट व्हाई? रीजन है कि क्यों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना पॉपुलर हो गया है कि ईच एंड एवरी फील्ड ऑफ रिसर्च पीपल आर ट्राइंग टू यूज द कंसेप्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या, सवाल ये है। आखिर इस वक्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्यों पॉपुलर हुआ पूरी दुनिया में? क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी लाइफ इजी हो जाएगी या डिफिकल्ट? दोनों सवाल है इस वक्त। और मैं आज का डेट में मैं आपको बताऊं, याद रखिएगा, 6 से 7 साल के बाद पूरे दुनिया में एक और बड़ा प्रॉब्लम्स आने वाला है, जिसमें जॉब क्राइसिस, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होंगे। मैं तफसील बताऊंगा आपको इसके बारे में। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसलिए पॉपुलर हुआ है ड्यू टू सोशल मीडिया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मीन्स नो डेटा नो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मोर डेटा मोर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और सोशल मीडिया के जरिए इतना ज्यादा डेटा जनरेट हो रहा है, जिसकी वजह से आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पॉसिबल है। तो चलिए, ये इंट्रोडक्शन है अबाउट द टेक्नोलॉजी। हम इसमें कवर करेंगे, इस टेक्नोलॉजी, इस टॉक में 3-4 टेक्नोलॉजी को यूज करेंगे, कंबाइन करेंगे और देखेंगे आपको रियल लाइफ में क्या प्रॉब्लम आ रही है और उस आपके रियल लाइफ प्रॉब्लम को कैसे इस टेक्नोलॉजी के जरिए सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैं प्रॉब्लम आपको बताऊं स्टार्ट करने से पहले, और फिर उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी बताऊंगा मैं लास्ट में, एट द एंड ऑफ द लेक्चर एंड देन द डिस्कशन। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में क्या होती है? मान लीजिए पहला प्रॉब्लम, आप यहां पे दिल्ली में काम करते हैं तो अलीगढ़ में रहते हैं, या आप दिल्ली में काम करते हैं किसी कंपनी में, यूनिवर्सिटी में, जहां भी आप काम करते हैं, आप गुड़गांव में रहते हैं, यानी कि आपका ट्रेवल टाइम जो है 2 आवर, 1.5 आवर, 3 आवर्स है। आप मॉर्निंग में निकल जाते हैं घर से। अब सोचिए कि आप सुबह मॉर्निंग में निकले घर से और आप अकेले रहते हैं घर में। जैसे दिल्ली पहुंचे, अपने ऑफिस में पहुंचे, पहुंचने के बाद आपको एहसास होता है कि यार मैं घर का तो मोटर जो ऑन किया था, जल्दी जल्दी में निकला, हमने बंद करना भूल गए, या एसी ऑन था उसको बंद करना भूल गए। अब आप टेंशन में आ जाते हैं, बिजली का बिल पूरे दिन चलेगा, आ जाएगा, हो सकता है आग भी लग जाए, मेरे अप्लायंस भी खराब हो जाए। अब आप टेंशन में हैं, तो उस वक्त आपके जहन पे सवाल आता है कि क्या कोई टेक्नोलॉजी है जो अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। इसका एक तो सॉल्यूशन है कि वापस आप अलीगढ़ या गुड़गांव जाइए,
फिर 3 घंटा लगाइए, और ऑफिस उतने टाइम आपको देगी नहीं, तो आपके पास टाइम नहीं है, अब कैसे करेंगे? ताला लॉक है, किसी पड़ोसी से भी कहकर आप बंद नहीं करा सकते। तो ये एक प्रॉब्लम है रियल लाइफ में, इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे? तो इसका सॉल्यूशन भी द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी कर सकते हैं। इसका सॉल्यूशन मैं बाद में बताऊंगा कैसे करेंगे। दूसरी प्रॉब्लम, आप यहां से अब सेकंड में, अब जैसे घर जा रहे हैं आप 3 घंटा ट्रेवल करके या 2 घंटा, घर जाने के बाद आपको ऐसा लग रहा है कि आपके घर में कोई फैमिली मेंबर बीमार पड़ गया है। अब वो सिचुएशन है कि आपको हॉस्पिटल जाना है, उसी टाइम में आपके बॉस का फोन आ रहा है कि आपको ऑफिस आना है, अर्जेंटली कोई काम है। अब आप दुविधा में पड़ जाते हैं कि क्या अपने फैमिली मेंबर को हॉस्पिटल ले जाएं? अगर हॉस्पिटल लेकर नहीं जाते हैं तो फैमिली मेंबर को आप लॉस कर सकते हैं। अगर आप कंपनी में वापस नहीं जाते हैं, बॉस ने बुलाया आपको, तो आप नौकरी से हाथ धो देंगे, नौकरी को लॉस कर जाएगी। अब एक टेंशन में आ जाते हैं, आप करें तो क्या करें? ये किसी एक को खोना पड़ेगा अगर हम नहीं करते। फिर आपके जहन पे आता है काश कोई टेक्नोलॉजी होती इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे। यस, राइट नाउ टेक्नोलॉजी इज अवेलेबल एंड यू कैन सॉल्व योर प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम दूसरी हुई, इसका भी सॉल्यूशन मैं आपको लास्ट में बताऊंगा पूरे लेक्चर के बाद। तीसरी प्रॉब्लम, आप घर पे अकेले रहते हैं, आप कंपनी में काम कर रहे हैं, कोई लेडी मेंबर आपके फैमिली से आपके घर पहुंची जबकि आपका घर लॉक है, और 10 बजे पहुंच गई आप ऑफिस में। ऑफिस से आप जा नहीं सकते घर, तो ऑफिस अलाउड नहीं है या दूर है। अब वो फीमेल आपका रिलेटिव, अब वो क्या करे, कोई जानने वाला नहीं है, अब बहुत दूर से आ गए हैं, सामान भी है, फ्रेश होना है, कहाँ बैठेंगी, कहाँ रहेंगी? अब टेंशन में आ जाते हैं, यार क्या करूं, कैसे करूं, या तो हाफ में छुट्टी लूं या जाऊं, जाने में 1.5 घंटा लगे तो परेशान रहेंगी लेडी। तो जो आपके जहन पे सवाल आता है, क्या कोई टेक्नोलॉजी है जो मेरे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके? यस, नाउ टेक्नोलॉजी इज अवेलेबल, इसका भी सॉल्यूशन। तो ये हमने 3 प्रॉब्लम को आपको बताया। इसके साथ साथ आपके रियल लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स है जिसका सॉल्यूशन आज के डेट में हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, आईओटी, इंडस्ट्रियल आईओटी, इन वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी, इन सारे कंबाइन करके यानी इंडस्ट्री 4.0 का यूज करके हम अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो चलिए हम अब फॉर्मल स्टार्ट करते हैं आपको। तो ये सारे हमारे बैकग्राउंड रहा स्टॉक का, और इसके अलावा भी बहुत सारे सवाल आपके जहन पे होगा, आप पूछेंगे, लास्ट का हाफ एन आवर देंगे हम डिस्कशंस के लिए। इस टेक्नोलॉजी को आप अपने किसी भी फील्ड का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए अब फॉर्मल प्रेजेंटेशन स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड बिग डेटा एनालिटिक्स यूजिंग आईओटी इन क्लाउड एंड रियल लाइफ एप्लीकेशन इन रियल लाइफ में हम कैसे इसको यूज करेंगे, और आज के डेट में इसका एप्लीकेशन यूज हो रहा है। जो प्रॉब्लम बताया आपको, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इस टेक्नोलॉजी के जरिए आपको मिल जाएगा। कहीं पे 2 टेक्नोलॉजी यूज होगा, कहीं पे 1 टेक्नोलॉजी यूज होगा, करके आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। अब चलिए देखते हैं, हमने जो बात की आपसे कि डेटा, नाउ द डेटा इज बिग डेटा। डेटा एवरीवन नो, डेटा इंफॉर्मेशन एंड द नॉलेज। अब किसी स्टूडेंट को कहते हैं कि दिस स्टूडेंट इज इंटेलिजेंट, दैट पर्टिकुलर टीचर इज इंटेलिजेंट, बट व्हाई इंटेलिजेंट? बिकॉज huge amount of data and स्पीकर बंद कर लीजिए, stored in the human mind, and whenever you ask a question you will get the answer from that student or from that person, then you say that person is intelligent. And why intelligent? Because huge amount of data related to a particular topic is stored in the human mind. So let us understand how the data are stored in the human mind. In the same concept, we can implement it in the machine to make the machine intelligent. यानी हम ह्यूमन बीइंग हैं, हमारे पास सोचने की ताकत है,
हमें डिसीजन ले सकते हैं। तो क्या जो इंसान की कैपेबिलिटीज है उस कैपेबिलिटीज को हम मशीन को दे सकते हैं? यस, राइट नाउ इट इज पॉसिबल एंड पीपल स्टार्टेड गिविंग ऑल कैपेसिटी ऑफ ए ह्यूमन बीइंग टू ए मशीन। जो 8-10 साल पहले हम लोग सोचते थे तो फिक्टिशियस लगता था। पिक्चर में देखते होंगे आपने, रावण पिक्चर देखी है आपने, रोबोट पिक्चर देखी है, तो दैट ऑल वेयर द फिक्टिशियस थिंग, बट दैट फिक्टिशियस राइट नाउ यानी वो काल्पनिक था और आज के डेट में ये रियलिटी में कन्वर्ट होना शुरू हो गया, यानी रियलिटी में अब आना शुरू हो गया। जैसे एक एग्जांपल मैं देता हूं आपको, आप सबने देखा होगा, लीसा का नाम सुना आप लोगों ने, न्यूज एंकर। लीसा इज ए न्यूज एंकर दैट इज नॉट ए ह्यूमन बीइंग, दैट इज द कंप्यूटर concept of artificial intelligence is used there, and she is giving her news, but just you can see her, she is looking like a human being. That is the one example. And now it is started in India also, implementation of Industry 4.0. One private university started replacing the job of teacher with the virtual teacher and the AI based machine. It is started. And after 7-8 years, there will be a great revolution in India or in the world. तो अब देखिए कैसे कंसेप्ट इस्तेमाल करते हैं हम। Big data means high volume of data, data coming from high speed, variety of data, veracity of data, that is the big data. Huge amount of data is stored in your mind, but how the data is stored in your mind, the same mechanism we can give it टू द कंप्यूटर। हम दिखाएंगे आपको पैरेलली कि कैसे जो इंसान के माइंड में जो काम करता है उसको हम कैसे मशीन में दे सकते हैं। तो देयर आर 4 एक्टिविटीज टेक प्लेस इन योर माइंड, क्योंकि आपके दिमाग में इमेज भी स्टोर होता है, पिक्चर भी स्टोर होता है, वीडियो भी होगा, सब कुछ स्टोर आपके डेटा माइंड में है। लेकिन इसके लिए कोई टूल यूज नहीं करता डेटा को मैनेज करने के लिए, तो मैनेज कैसे होता? ऑटोमेटिकली मैनेज होगा। तो देयर आर 4 एक्टिविटीज take place in your mind. First one, attention. Second one, rehearsal. Third one, encoding. And fourth one, retrieval. ये 4 तरह की एक्टिविटी हमारे माइंड में होती है और ये चारों एक्टिविटी जब एक साथ स्टार्ट हो जाएगा तो यू विल बी द वेरी पावरफुल मैन और वेरी इंटेलिजेंट मैन। कैसे आप बताते हैं आपको? सर फोर्थ आपने क्या बताया? फोर्थ है रिट्रीवल। रिट्रीवल। अब एक चीज तो नोटिस कीजिएगा, यहां पे हम इसको इसलिए बताते हैं कि द सेम कंसेप्ट वी आर गोइंग टू गिव टू द मशीन, दैट मशीन कैन बिहेव लाइक ए ह्यूमन बीइंग, और इट इज स्टार्टेड नाउ एंड कमिंग टू द इंप्लीमेंटेशन आल्सो। ओके, अब देखिए कंप्यूटर साइंस के कुछ लोग होंगे जो उनको पता होगा कि डेटा कैसे कंप्यूटर में स्टोर होता है। आपका प्राइमरी मेमोरी पे डेटा जो स्टोर होता है ना, इलेक्ट्रिकल फॉर्म में होता है, हाई वोल्टेज एंड लो वोल्टेज। जैसे वो 0-1 में कन्वर्ट होता है, तो 0 लो वोल्टेज, 1 हाई वोल्टेज। एंड जब हम इसको सेव करते हैं सेकेंडरी मेमोरी पे, ट्रांसफर करते हैं ना प्राइमरी मेमोरी से लेकर सेकेंडरी मेमोरी में, तो वहां पे जाने के बाद वो मैग्नेट होता है और उसमें डायरेक्शन होता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। 0-1 को स्टोर कर देते हैं। ये 2 काम करते हैं। अब मेमोरी में कैसे स्टोर होता है? ह्यूमन के भी 2 मेमोरी है, एक को कहते हैं शॉर्ट टर्म मेमोरी, दूसरे को कहते हैं लॉन्ग टर्म मेमोरी। तो सबसे पहले आपका जो डेटा जो जाता है शॉर्ट टर्म मेमोरी में और फिर लॉन्ग टर्म में जाता है। अब डेटा कैसे स्टोर होता है वो देखिए, ताकि हम भी सेम चीज को मशीन को देने जा रहे हैं। मैकेनिज्म को चेंज कर, आपके माइंड में न्यूरॉन्स है, उसमें फास्फोरस होता है। तो जैसे जैसे आप डेटा देंगे उसमें, तो न्यूरॉन की इंटेंसिटी बढ़ती चली जाती है। आज तो नया कंसेप्ट आ गया है रिसर्च का, न्यूरो कंप्यूटिंग। तो इंटेंसिटी बढ़ता है। कई दफा देखिएगा जब आपको भूख लगी हो आपको ना, तो आपको कोई चीज याद नहीं आता है माइंड में। अगर आपकी बॉडी में फास्फोरस की कमी हो जाएगी ना, तो याददाश्त में कमी आने लगती है। तो ये मैकेनिज्म है आपको डेटा को स्टोर करने के लिए। जस्ट मिनट।
तो इंटेंसिटी को बढ़ा देता है जैसे ही डेटा को हम स्टोर करते हैं। अभी देखिए ये चारों एक्टिविटीज कैसे स्टार्ट होता है। सबसे पहला जो था हमारा अटेंशन। आप कहीं भी जाइए, अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि कोई मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह भेजना है तो आपका इंटरनेट कनेक्शन का होना जरूरी है। बिना इंटरनेट कनेक्शन का, बिना नेटवर्क आप डेटा को ट्रांसमिट नहीं कर सकते। उसी तरह से आप किसी से बात कर रहे हैं ना, या क्लासरूम में आप हैं, तो सबसे पहले आपको नेटवर्क बनाना होगा। अब नेटवर्क बनाएंगे कैसे? आपके बॉडी में इनपुट आउटपुट ऑर्गन्स हैं, जैसा कि कंप्यूटर में इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। अनुपम जी कुछ बोलना चाहते हैं? सर आपका स्लाइड चेंज नहीं हो रहा है सर। अभी चेंज किया ही नहीं सर, अभी इसी पे बोल रहे हैं स्लाइड। अच्छा ठीक है। अभी बताया ना, ह्यूमन फेस ऑफ बिग डेटा, यानी अभी इसी पे हम डिस्कस कर रहे हैं आपको, और इसको डिस्कशन के बाद हम दिखाएंगे, मैपिंग करेंगे कि हम इसको कैसे मशीन में लगा रहे हैं आज की डेट। ओके सर। ओके ना? yes, तो sir. हमने यहाँ पे बताया 4 एक्टिविटीज। फर्स्ट वन अटेंशन, सेकेंड वन रिहर्सल, थर्ड वन इनकोडिंग एंड फोर्थ वन रिट्रीवल। ये 4 एक्टिविटीज होती है, और यही 4 एक्टिविटीज को हम मशीन को इंटेलिजेंट करने में कर रहे हैं आज की डेट में। अब अटेंशन का मतलब है कि फर्स्ट यू आर गोइंग टू मेक द नेटवर्क अमंग द पीपल। जब आप 10 लोगों के साथ बैठे होते हैं या क्लासरूम में होते हैं, तो आपका माइंड और औरों का माइंड से क्या करते हैं, हम एक नेटवर्क बनाते हैं। जैसे ही नेटवर्क बन जाता है, तो जो इंसान बोलता है वो मैसेज हर इंसान के पास जाता है, ब्रॉडकास्ट करते हैं आप, और सबका माइंड रिसीव करता है। आप नोटिस कीजिएगा, 3 दोस्त आप आपस में बात कर रहे हैं, उसमें से एक दोस्त कहता है थोड़ी देर बाद, अरे क्या बातें हो रही थी, जबकि वहां पे मौजूद है। इसलिए वो बोल रही है बात, क्योंकि वो नेटवर्क में नहीं था, जबकि आपके पास में था। तीनों दोस्त एक साथ बैठे हुए हैं, एक साथ खड़े हुए हैं, बातें कर रहे हैं। उसमें से एक दोस्त कहता है भाई क्या बातें हो रही। इसका मतलब कि वो उस नेटवर्क में नहीं था, नेटवर्क से बाहर था, इसलिए वो जो मैसेज आपने बोला उस तक नहीं पहुंचा। तो अटेंशन का मतलब कि यू आर गोइंग टू एक्टिवेट ईच इनपुट एंड आउटपुट ऑर्गन्स ऑफ योर बॉडी टू ट्रांसमिट द मैसेज और रिसीव द मैसेज। तो जैसे ही आप मैसेज को रिसीव करते हैं, आप रिसीव करने के बाद सेकेंड स्टेप स्टार्ट होता है इन योर माइंड, दैट इज नोन एज द रिहर्सल। As soon as get the message from surrounding, next step started, that is known as the rehearsal. If you are in the network, if you are not in the network, then that second step will not work. So the first step is very important, attention. जैसे ही आपको सेकेंड स्टेप स्टार्ट होता है रिहर्सल का, आपका माइंड सवाल करना शुरू कर देता है। जैसे ही मैसेज रिसीव करता है, सवाल क्या करता है, व्हाट, हाउ एंड व्हाई। अगर आपके माइंड से सवाल आ रहा है आफ्टर रिसीविंग द मैसेज फ्रॉम द सराउंडिंग, व्हाट, दैट मीन्स योर ब्रेन इज वर्किंग एज ए स्टूडेंट ऑन द सेम इंफॉर्मेशन। 2 क्वेश्चन arises, what and how, that means your mind is working as a teacher. If 3 questions arises in your mind, what, how and why, that means your brain is working as a scientist or researcher. बहुत ही फेमस एग्जांपल है, हर इंसान दरख्त के पास बैठता है, दरख्त को देखता है, उसमें फल लगा हुआ होता है, और सबको पता है कि फल ऊपर से गिरने के बाद नीचे ही आता है। लेकिन उसी दरख्त के पास एक ऐसा इंसान बैठे हुए थे जिन्होंने कहा कि ये फल नीचे ही क्यों आया, ऊपर क्यों नहीं चला गया। तो उस टाइम के उनके साथियों ने कहा होगा कितना पागल आदमी है, इसको ये नहीं पता कि फल टूटने के बाद नीचे ही गिरता, ऊपर नहीं जाता है। लेकिन उन्होंने सवाल किया कि क्यों, वाई, और उन्होंने उस वाई का जवाब ढूंढा
तो बहुत बड़े साइंटिस्ट बन गए जिनका नाम है न्यूटन। तो जब आप वाई सवाल करते हैं ना तो उसका जवाब नहीं होता है तो लोग आपको गलत कहते हैं, अरे यार ये पागल है या कुछ भी है। तो साइंटिस्ट को हमेशा ऐसा ही लिया जाता है, लेकिन वही साइंटिस्ट उसको सर्च करके और दे देते हैं और नया टेक्नोलॉजी। आज देखिए न्यूटन साहब को कितने लोग जानते हैं, और न्यूटन साहब का कंसेप्ट हर जगह यूज होता है प्रैक्टिकल में, टेक्नोलॉजी में। आपने देखा होगा जो फिजिक्स के होंगे और भी साइंटिस्ट होंगे तो न्यूटन लॉ आपने देखा होगा, इस तरह से बहुत जगह बहुत फील्ड में आपने देखा होगा। तो भी एक इंसानी थे, उन्होंने सोचा। तो ये तीन जब सवाल होता है आपका माइंड में उसके बाद क्या होता है, वो डेटा रिफाइन हो जाता है और क्वालिटी डेटा हो जाता है, यानी कि वो एरर फ्री डेटा हो जाता है। यानी कि कहते हैं कि आप सेटिस्फाइड हो गए जब आपको आंसर मिल जाता है, आपको जितने क्वेरी है उसका जवाब मिल जाता है। दैट मीन्स दैट इंफॉर्मेशन इज नाउ द क्वालिटी इंफॉर्मेशन और गुड इंफॉर्मेशन। आफ्टर दैट another activity is started in your mind that is known as the encoding process. अभी तक ये जो काम हो रहा था ना ये शॉर्ट टर्म मेमोरी में हो रहा था। अब जैसे ही डेटा रिफाइन हो गया, रिफाइन होने के बाद एक नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट होता है, दैट इज नोन एज द इनकोडिंग प्रोसेस। इनकोडिंग प्रोसेस मीन्स द डेटा, क्वालिटी डेटा transfer from short-term memory to the long-term memory, and that data is stored there permanently. और लाइफ में कभी आप उस डेटा को भूल नहीं सकते, उस इंफॉर्मेशन नहीं भूल सकते, आपको माइंड में परमानेंटली स्टोर हो गया। और इसी तरह के डेटा जिसके माइंड पे स्टोर हो जाता है वो इंसान इंटेलिजेंट हो जाता है। उसे कोई भी सवाल पूछेंगे वो फौरन जवाब देगा, क्योंकि उसने अपने अंदर क्वालिटी डेटा को स्टोर कर लिया, और एक बार स्टोर हो गया तो परमानेंटली रहेगा, वो कहीं से जाएगा नहीं। उसके बाद चौथा स्टेप स्टार्ट होता है, दैट इज नोन एज द रिट्रीवल प्रोसेस। रिट्रीवल प्रोसेस, रिट्रीवल का मतलब कि जैसे ही सराउंडिंग से कोई क्वेश्चन आएगा, आप ईयर से सुनेंगे, आई से देखेंगे, और जाने के बाद उस क्वेश्चन का आंसर आपको लॉन्ग टर्म मेमोरी से सर्च करता है, और सर्च करने के बाद उसका आंसर आपको माउथ के जरिए या जेस्चर के जरिए आपके फ्रंट पे आ जाता है, और फिर आपको लोग कहने लगता है आप इंटेलिजेंट है, फौरन आपने जवाब दे दिया। तो ये 4 स्टेप होगा। अब नोटिस कीजिएगा पिक्चर देखते हैं आप, जब पिक्चर देखने के बाद पूरी की पूरी कहानी आपको याद हो जाती है, इवन की सॉन्ग और डायलॉग भी आपको याद हो जाता है। लेकिन क्लासरूम में 1.5 घंटा आप पढ़ाते हैं या 1 घंटा पढ़ाते हैं आप, क्लासरूम से बाहर आने के बाद बच्चों से पूछिए कि कुछ समझ में आया, तो कुछ बच्चे कहते हैं कि कुछ नहीं समझ में आया, और उसी बच्चे को पिक्चर दिखा दीजिए 3 घंटे का, वो पूरे के पूरे कहानी आपको बता देगा। तो क्यों? वाई? सेम ब्रेन वर्किंग इन द सेम स्टाइल। यानी एक ब्रेन पिक्चर हॉल में जाता है, देखता है तो सब कुछ याद हो जाता है, क्लासरूम में आता है 1.5 घंटे क्लास में कुछ नहीं याद आता। अनदर एग्जांपल, आप टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं, क्या ऐसा हो सकता है कि टेक्स्ट बुक को पहला पेज से स्टार्ट किया और लास्ट पेज तक पढ़ने के बाद बुक को बंद करें और पूरे के पूरे इंफॉर्मेशन बुक आपके दिमाग पे आ जाए? क्या ये पॉसिबल है? यस, पॉसिबल है। एग्जाम्पल, अब देखिए टेक्स्ट बुक तो नहीं समझ में आता बच्चों को, हमेशा बुक को देखना पड़ता है, लेकिन नॉवेल की बुक देखिए, टेक्स्ट बुक से नॉवेल की बुक मोटी होती है, लेकिन पूरी नॉवेल की बुक आपको माइंड पे आ जाता है और एक एक चीज समझ में आ जाता है। क्यों? आखिर एक ही ब्रेन कैसे काम करता है। तीसरी चीज, आप सीरियल देखते हैं, सीरियल के एक एक पॉइंट आपको याद है, एक एक डायलॉग आपको याद है, और 1 हफ्ता तक आप वेट करते हैं, 1 हफ्ता तक वेट करते हैं उस सीरियल को देखने के लिए, अपने टाइम को मैनेज करते हैं। ऐसा क्यों? सवाल ये है क्योंकि ये 4 एक्टिविटीज जो मैंने आपको बताया, ये चारों एक्टिविटीज स्टार्ट हो जाता है पिक्चर देखते वक्त, नॉवेल पढ़ते वक्त एंड सीरियल देखते वक्त। बट
In the case of classroom, this all activity is not started while you are studying the textbook. This all 4 step not started. Why? Reason क्या है? अब हम बात करते हैं क्लासरूम की। क्लासरूम में ये चारों स्टेप इसलिए स्टार्ट नहीं होती है क्योंकि पहला ही स्टेप अटेंशन जो है ना, आपने सही से एग्जीक्यूट नहीं किया क्लास में, तो नेटवर्क ही नहीं बना। जब नेटवर्क ही नहीं बनेगा तो इंफॉर्मेशन नहीं आएगा ब्रेन में, तो जब इंफॉर्मेशन ब्रेन में नहीं आएगा तो आगे का प्रोसेस होगा ही नहीं। तो पहले एज ए टीचर हम सबको चाहिए कि क्लास में जाकर नेटवर्क बनाएं बच्चों से। बच्चे जब सवाल करते हैं तो हम उसको डांट कर बैठा देते हैं, जवाब नहीं देते, वहीं से उसका ब्रेन नेटवर्क से कट जाता है, माइंड कहीं और चला जाता है। टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं तो यहां पे किसकी क्वालिटी रही? टीचर की। एक टीचर की बहुत बड़ी रोल होगी। पिक्चर में डायरेक्टर की, कि ऑडियंस को कैसे अपने तरफ अट्रैक्ट करना है ताकि उसका माइंड जो है आपके क्लासरूम से बाहर ना जाए, आपके साथ कनेक्ट रहे, हमेशा कंटिन्यूअस कनेक्टिविटी रहे। जैसा कि पिक्चर में कनेक्टिविटी होती है, या आपके बगल में कोई आकर बैठ जाए आपको पता नहीं चलता है, तो कनेक्टिविटी है और काम करना शुरू करता है। नॉवेल में भी राइटर की एक क्वालिटी है कि राइटर ने ऐसा टेम्पलेट करता है कि व्हाट विल नेक्स्ट, उसके माइंड पे आना चाहिए ऑडियंस के कि आप जो बताया उसके बाद ऐसा कीजिए कि उसको सोचने में मजबूर हो जाए व्हाट विल नेक्स्ट। जब नेक्स्ट सोचेगा फिर उसका दिमाग काम करना शुरू करता है, तो हमेशा रहेगा। तो नॉवेल में भी लिखते हैं जो राइटर कि आप पढ़ते हैं फिर आपको टेम्पलेट करता है आगे क्या होगा, फिर आगे पढ़ते, फिर आगे पढ़ते। सीरियल में भी ऐसे मोड पे रोकेंगे आपको कि आपको टेम्पटेशन हो जाएगा कि व्हाट विल नेक्स्ट, तो उसके लिए आप 1 हफ्ते तक वेट करते हैं सीरियल को देखने के लिए। तो अगर अच्छे टीचर आप बनना चाहते हैं तो आप ऐसा टीचिंग करें। स्टोरी टेलिंग इज द मॉडर्न टेक्नोलॉजी फॉर द मॉडर्न टीचर। ये एनईपी और नया आया है ना, इसमें यह है आईसीटी पढ़ाया जा रहा है कि हाउ टू मेक ए टीचर स्मार्ट एंड द मॉडर्न टीचर। ए गुड क्वालिटी ऑफ टीचर, ए गुड टीचर दैट टीच द स्टूडेंट इन स्टोरी टेलिंग स्टाइल, क्योंकि स्टोरी से स्टूडेंट को बहुत अच्छे समझ में आता है और रियल लाइफ एग्जांपल देकर। जैसा कि आपको सीरियल में देखा, आपने नॉवेल में देखा, कहीं कहीं बुक भी देखिएगा, पूरी की पूरी बुक याद हो जाती है अगर बुक का राइटर अच्छा है, उसको अच्छे स्टाइल में राइट करता है, स्टूडेंट को टेम्पटेट करता है, उसका इंटरेस्ट डेवलप करता है बाय गिविंग द गुड क्वालिटी ऑफ एग्जाम्पल, गुड एग्जाम्पल, सो दैट द कनेक्टिविटी ऑफ स्टूडेंट विद द बुक शुड बी कंटिन्यू। तो इस तरह से हमारा ये एक्टिविटीज होती है भाई। आप देखिए अब यही ब्रेन है, इसी इंसान ने ना जितने टेक्नोलॉजी दुनिया में बना है ना, ये इंसान नहीं बनाया ना, हम आप जैसे इंसान बनाया है। उसको सोचता है और सोचने के बाद वाई करता है। वाई इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डेवलप द टेक्नोलॉजी एंड देन स्टार्ट टू डेवलप द न्यू टेक्नोलॉजी इन द वर्ल्ड। आपने देखा कि दुनिया में कितने अच्छे अच्छे टेक्नोलॉजी आ रहे हैं जो अपने लाइफ में यूज करते हैं। उस टेक्नोलॉजी को बनाने वाले ऊपर वाले नहीं है, हम आप जैसे इंसान हैं, सोचते हैं और उस प्रॉब्लम देखते हैं और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देते हैं और नया टेक्नोलॉजी बन जाता है। तो ये रहा हमारा मैकेनिज्म कि ब्रेन कैसे काम करता है। अब देखिए, अब इन चारों चीजों को मशीन में कैसे लोग इस्तेमाल कर रहे हैं उसको मैं बताऊंगा आपको, आगे देखिए। अब यहां तो हमने बताई आपको, जितने भी चीजें बताई वो इंटेलिजेंट, ओके। अब उस इंटेलिजेंट में हम आर्टिफिशियली बनाने जा रहे हैं। कहते हैं अभी तक हमने बताया आपको इंटेलिजेंस, आप इंटेलिजेंट हैं या इंटेलिजेंट है, इंटेलिजेंसी के बारे में बताया। अब उस इंटेलिजेंसी को हमें देना है मशीन को। तो जब मशीन इंटेलिजेंट होगा तो वो आर्टिफिशियली होगा, नॉट ह्यूमन बीइंग, आर्टिफिशियली। तो अब देखिए ब्रीफ हिस्ट्री अबाउट द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। Artificial intelligence started from 1943 and 1943 में मैक्स क्लर्सन ने कंसेप्ट दिया कैलकुलस ऑफ आइडियाज। इस कंसेप्ट को 1943 में दिया, ए लॉजिकल कैलकुलस ऑफ आइडियाज इमेंट इन नर्वस एक्टिविटी, इन्होंने प्रपोज किया 1943 में। उसके बाद ये जर्नी स्टार्ट हुआ
उसी बीच में एक ट्यूनिंग साहब आए, जिसको हम कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा इंसान, जिन्होंने स्टार्ट किया था। उन्होंने स्टार्ट किया था ट्यूनिंग टेस्टिंग। उसके बाद करीब 7 साल बाद 1950 में कंसेप्ट आया कि ट्यूनिंग पब्लिश ए कंप्यूटिंग मशीनरी एंड इंटेलिजेंसी। उन्होंने एक कंसेप्ट दिया एंड कंसेप्ट को पब्लिश किया। सबसे पहले देखिए, हम रिसर्चर है ना, अपने एक आइडियाज होता है, उस आइडियाज को फॉर्मुलेट करते हैं, पब्लिश करते हैं। पब्लिश करने के बाद फिर उस आइडियाज को हम इंप्लीमेंटेशन लाते हैं, टेक्नोलॉजी के फॉर्म में लाते हैं। उसके बाद 1956 में डॉट मॉथ ने एक कॉन्फ्रेंस में ऑर्गेनाइज किया, मैस्कुलिन ने, एंड सनून ने उस मार्केटिंग की बर्थ ऑफ एआई एज ए फील्ड ऑफ स्टडी। तो एआई का फील्ड एज ए स्टडी इंट्रोड्यूस कर दिया गया 1956 में, यानी 1956 से एआई पढ़ाना शुरू कर दिया गया था, लेकिन उतना ज्यादा ये पॉपुलर नहीं था। उसके बाद स्टार्ट हुआ 1957, एक साल बाद, कि रोसेन वेट ने क्या किया, डेवलप द परसेप्ट्रॉन। सर बीच बीच में आपकी आवाज कट हो जा रही है। नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है जी अब? सर, आवाज आ चली रही जा है रही है या स्लो बोलूं? हाँ अभी आ रही है सर। नाउ माय साउंड इज क्लियर? आ रही है सर। क्लियर आ रही है। आ रही है सर, आ रही है। ओके, ठीक आ रही है। कभी कोई नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाती है, टेक्नोलॉजी है। नहीं सर, कोई बात नहीं है। सर आवाज आ रही है, असल में इनके पर्सनल दिक्कत होगी नेटवर्क में। यहाँ आवाज आ रही है। ओके, आवाज आ रही है, ठीक है। सो परसेप्ट्रॉन का इस्तेमाल हुआ एंड दैट वाज द फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड न्यूरल नेटवर्क का कंसेप्ट आया। न्यूरल नेटवर्क, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड न्यूरल नेटवर्क कंसेप्ट आया 1957 में। उसके बाद कंसेप्ट हुआ हमारा, स्टार्ट हुआ 1967 में। क्या आया, नेवेल एंड सिमंस ने डेवलप किया ए जनरल प्रॉब्लम सॉल्वर, जैसे जीपीएस का इस्तेमाल किया एआई के जरिए, क्योंकि यहाँ पे डेटा है। देन 1974 में, सॉरी यहां से पहले था 1965 में, क्या किया कि आपने विजयम ने, एलिजा ने नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का कंसेप्ट दिया। ये भी आपने देखा फील्ड ऑफ रिसर्च है। Natural processing language, that all are the part of artificial intelligence, that was started in 1965. And then 1974 the first AI winter begins, and marketed by the decline for funding and internet in interest in AI and expected and the United Progress. Then ये जर्नी अब देखिए कैसे स्टार्ट हुआ यहाँ पे। फिर 1980 में एक्सपर्ट सिस्टम का कंसेप्ट है, जो कंप्यूटर साइंस के लोग होंगे वो जानते होंगे। फिर उस एआई में बदलाव आया और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एक्सपर्ट सिस्टम का इंट्रोडक्शन शुरू हो गया, जिसमें न्यूरल नेटवर्क का कंसेप्ट भी आया 1986 में। वहां पे न्यूरॉन से कंसेप्ट था पहले, न्यूरल नेटवर्क का जो कंसेप्ट आया 1986 में आ गया। उसके बाद आपका एक आईबीएम कंपनी है जिन्होंने डेवलप किया डीप ब्लू डिफीट चेस का इन द वर्ल्ड, ये डेवलप किया एआई के उसके 1997 में। 97 के बाद स्टार्ट चलता रहा। सबसे ज्यादा जो रेवोल्यूशन हुआ फिर 2002 में। अब देखिए 2002 जो है, आपको याद होगा 2000 तक कंप्यूटर साइंस में बूम था। अचानक 2002 के बाद रिसेशन शुरू हो गया कंप्यूटर साइंस में। 2002 में रोबोट इंट्रोडक्शन हुआ। जो रोबोट का इंट्रोडक्शन जो मैं बात आपको कर रहे हैं कि आप लीसा न्यूज एंकर टीचर बन जाएंगे, तो 2002 में रोबोट का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हो गया, ज्यादा पुराना नहीं है। और उसके बाद देखिए कितना रैपिडली ग्रोथ हुआ है इसमें। 2002 के बाद फिर आया आपका 2011, आईबीएम ने वाटसन डिफीट 2 फॉर्मर जेन पोर्ट का डेवलप किया, यानी चैंपियनशिप अपने कराया उसमें। उसके बाद 2012 में एआई स्टार्टअप डीप माइंड डेवलपमेंट का शुरुआत हो गया, एंड दैट वाज द you can say neural network that can recognize the
कैट एंड द यूट्यूब वीडियोस। यूट्यूब वीडियोस में देखिए, अब यूट्यूब वीडियोस जो स्टार्ट हुआ 19, अब देखिए नोटिस कीजिएगा, यूट्यूब जो है बहुत पॉपुलर जो है, एआई का कंसेप्ट जब इस्तेमाल हुआ, उसमें क्लाउड का कंसेप्ट हुआ, तो ये 2012 से वीडियो जो है शुरू हो गया था। उसके बाद 2014 में आ गया फेसबुक, यानी कि फेसबुक क्रिएट ए डीप फेस ए फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम दैट कैन रिकॉग्नाइज फेस विथ नियर ह्यूमन एक्यूरेसी। अब फेसबुक इससे पहले भी यूज किए होंगे, लेकिन जैसे ही फेसबुक में ये फेस रिकॉग्निशन इस्तेमाल हुआ, वो 2014 से शुरू हो गया फेसबुक में, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज फेसबुक में होने लगा। 2015 में क्या किया, अल्फा गो डेवलप हुआ। बाय द डीप माइंड डिफीट वर्ल्ड चैंपियन ली सेटल द गेम्स ऑफ द गो, एक नया गेम बनाया गया, वहां पे यूज किया गया। उसके बाद 17 में आपको गूगल्स ने यूज करना शुरू कर दिया। देन 2020 में आ गया ओपन एआई। देखिए गौर से, अब ओपन एआई आ गया कि 2020 में, जिसको आप यूज कर रहे हैं चैट जीपीटी, दैट इज द ओपन एआई। एंड 2021 में दैट इज द डीप माइंड, एंड अगेन सॉल्व द वेरियस प्रोटीन फोल्डिंग प्रॉब्लम्स, यानी बायोलॉजिकल साइंस के लोग प्रोटीन फोल्डिंग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज करने लगे। उसका एक कंसेप्ट आ गया 2021 में। और 2022 में गूगल फायर द इंजीनियर ब्लैंक एंड मॉडल फॉर द लैम्डा, एंड दैट इज द एप्रिसिएशन नेटवर्क बन गया। एंड 2023 में आर्टिस्ट द क्लास एक्शन, अब आर्टिस्ट भी उसको यूज कर लेंगे, यानी कि 2023 तक कंप्लीटली यूज होने लगा। अब ये देखिए, थोड़ा सा इसकी बात मैं करता हूं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अब क्या किया है 2023 के बाद। इससे पहले भी कंसेप्ट था ये, लेकिन अब फ्रीक्वेंटली यूज होना शुरू हो गया। यानी कि एक दो टाइप का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, टाइप 1 एंड टाइप 2। टाइप 1 में है आपको नैरो एआई, जो अभी तक यूज कर रहे थे लोग नैरो एआई का, जिसमें आपको डीप लर्निंग है, मशीन लर्निंग है। उसके बाद आपको आ रहा है, अभी स्टार्ट हो गया है जनरल एआई। जनरल एआई क्या करेगा कि ह्यूमन की जो तरफ काम करे, जो भी बताया आपको। और सॉरी सर, डबल आवाज आ रही है, आवाज डबल आ रही है। एक मिनट, क्यों ऐसे डबल आ रही है? नहीं, वो दूसरे का माइक खुला था, है मोहम्मद इमरान का। अच्छा, आप तो आ रहे सही आवाज आ Yes, रही sir, ठीक आ रही सर। ओके। अब कंसेप्ट है कि जो स्ट्रॉन्ग एआई आने वाला है ना, वो बियॉन्ड द ह्यूमन माइंड काम करना शुरू कर देगा। फिर टाइप 2 में जाएंगे तो थिंकिंग ऑफ माइंड और बियॉन्ड द इंसान काम कर। सोचिए कि व्हाट विल हैपन इन द कमिंग फ्यूचर। अब देखिए, एआई की बात हम करते हैं यहाँ पे। एआई को 3 फेज में डिवाइड किया गया है। अगर किसी से आज के डेट में पूछिएगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में आप जानते हैं, तो you'll get the answer 72% yes and 17% no and 11% not sure। 11% लोग जानते होंगे, नहीं जानते होंगे, और 17% लोग कहते हैं कि मालूम नहीं है। लेकिन 72% यानी कि मैक्सिमम पीपल नो अबाउट द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इररेस्पेक्ट ऑफ रिसर्च फील्ड और एनी स्टडी ऑफ फील्ड। हर फील्ड के लोगों को पूछिएगा, हर एक इंसान आज के डेट में कहेगा कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में जानता हूं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या। अब गौर से देखिए, इसमें हमारे पीपीटी में 3 कलर है, एक ग्रीन कलर है और एक येलो कलर है और एक मैजेंटा कलर है। जो ग्रीन कलर है दैट इज ऑलरेडी डेवलप्ड, येलो कलर जो दिख रहा है अंडर डेवलपिंग, और वायलेट कलर जो है ना, वो इंडिकेट करता है फ्यूचर में क्या होगा। तो आज के डेट में एआई बेस्ड मशीन 57% एबिलिटी टू लर्न, 50% सॉल्व द प्रॉब्लम। लेकिन आज के डेट में मैं थोड़ा सा सर्वे पहले का है, थोड़ा सा 2-3 साल पहले का है, तो आज के सर्वे में कहेंगे तो सॉल्विंग प्रॉब्लम जो है ये 60 क्रॉस कर रहा। अगर नया डेटा को हम इसको एनालिसिस करें तो 50% से ऊपर जा रहा आपका
that is used to solve the problem. जैसे आप चैट जीपीटी है, अब देखा होगा आपने, आप किसी भी प्रॉब्लम को दीजिए तो फौरन आपको सॉल्यूशन दे देता है. Even when you are going to write the research paper, within 3 and 4 hours, you can prepare a manuscript with the help of ChatGPT. That is the OpenAI. 37% interpret the speech right now, AI-based machine. 35% ability to replicate the human interaction. जो ह्यूमन का इंटरेक्शन है उसको भी AI बेस्ड मशीन रेप्लिकेट कर सकता है. दैट इज द 35%. एंड AI बेस्ड मशीन थिंक 51% लॉजिकली. जैसे हम इंसान बात करते हैं तो लॉजिकली सोचते हैं, उसी तरह से आज के डेट में 51% मशीन जो है ऑल्सो सर आपकी आवाज चली गई. सर आपका म्यूट हो गया माइक. सर आपका सर माइक म्यूट है. सर आपका माइक म्यूट है. सर आवाज नहीं आ रही. सर आपका आवाज माइक नहीं आ म्यूट रही हो सर गया आप. है. मैसेज सर नहीं आवाज पड़ेगा. नहीं आ रही है. सर का माइक म्यूट है. हो सकता है सर कुछ बिजी हो गए थोड़ी देर के लिए. सर उसकी बात यही होगी. Not audible, sir. No voice. हाँ लेकिन स्लाइड्स तो रन कर रही है, इसका मतलब सर हाँ कुछ वही टेक्निकल प्रॉब्लम हुई है कुछ. अब मेरी आवाज आ रही है? यस सर आ रही है. सर आ रही है. यस सर. यस सर. आ रही है सर. आ रही है. यस सर आ रहा है सर. मेरी आवाज आ रही है आपको? यस सर. आ रही है सर. ओके. मेरी आवाज आ रही है? जी सर सर आवाज आ आ रही रही है है. सर. आपकी आ रही है. स्लाइड्स नहीं दिख रही सर. स्लाइड्स दिख रही हैं अभी. यस आप सर दिख यस रहे हैं. सर. और अब मैं देखो, अभी हमने उसको ये किया है, अब आवाज आ रही है आपको, पहले नहीं आ रही थी. पहले नहीं आ रही थी. 5 मिनट से नहीं आ रही थी. यस सर नहीं आ रही थी. ओके ओके, अब आ रही है? जी सर. यस सर. सर ये वाला पीपीटी जो एक्सप्लेनेशन दिया आपको, आवाज थी उस पर या दोबारा एक्सप्लेन करें? नहीं थी आवाज ही सर उस टाइम. ओके, तो देखिए 31% AI based machine is going to replace the human job. अब इंसान की जॉब को रिप्लेस करने जा रहा है. दैट इज 31%. इन द कमिंग फ्यूचर मेनी मोर जॉब ऑफ ह्यूमन विल बी रिप्लेस्ड विद द हेल्प ऑफ AI बेस्ड मशीन. कई दफा यहाँ पे डिबेट हो जाता है, बहुत सारे लोग AI में टॉक देते हैं, कहते हैं, बोलते हैं कि डरने की बात नहीं है, AI से कोई नौकरी नहीं जाएगी. लेकिन मैं कहता हूं जाएगी. एग्जांपल दे रहा हूं मैं, चैट जीपीटी. जो कंटेंट राइटर थे, आज के डेट में कंटेंट राइटर की जॉब चली गई ड्यू टू चैट जीपीटी. मैं लिसा का एग्जांपल दिया. न्यूज एंकर, हर कंपनी न्यूज चैनल उसको रिप्लेस कर सकते हैं. तो जॉब तो जानी ही है, लेकिन घबराने की बात नहीं, दूसरी तरह की जॉब जनरेट होगी. तो आपको प्रिपेयर रहना होगा. जो इंसान प्रिपेयर रहता है वो फिर प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि उसको पता है कि ये प्रॉब्लम आएगी तो हम इसका सॉल्यूशन अल्टरनेटिव हम ढूंढ लेते. अब देखिए, जो फ्यूचर की बात करने जा रहा हूं मैं, AI बेस्ड मशीन टेक 10% ओवर द वर्ल्ड and 8% control your mind and 14% feel the emotion. अब आप कहते थे लोग कि AI बेस्ड क्या करेगा,
कि आपके माइंड को कंट्रोल कर ले। दैट इज वेरी डेंजरस थिंग फॉर द सोसाइटी। आप लोगों ने एक फिल्म देखी थी परिचित, प्रीति कुमारी जी, कुछ आपका माइक ऑन है और आप कुछ कहना चाह रही हैं क्या? या तो आप ओके ग्रेट। आप लोगों ने एक पिक्चर देखी होगी परिचित, अगर जिसने देखा होगा, यानी कि उसके माइंड को लगता है कोई कंट्रोल कर रहा है। आज सर मूवी का नाम अपरिचित नहीं था, अपरिचित था सर, अपरिचित। अपरिचित जो भी है, मुझे सही याद था, याद आ गया। देखी थी फिल्म आपने? ये सर देखिए। हाँ जी जी। आप देखिए कि मान लीजिए कि कोई इंसान आपके माइंड को कंट्रोल कर ले तो कितना डेंजरस है। अब दोनों पहलू है, प्रॉस एंड कॉन्स, कि अगर पॉजिटिव माइंड के लिए कोई बच्चा गलत काम कर रहा है, गलत डायरेक्शन में जा रहा है, तो एआई के जरिए उसका माइंड को कंट्रोल करके उसको सही रास्ते पे ला सकते हैं। एक तो पॉजिटिव सेंस में। निगेटिव सेंस में अगर कोई इंसान अच्छे इंसान के माइंड कंट्रोल करके निगेटिव डायरेक्शन में दे दे तो दैट इज द डेंजरस। तो मैं कहता हूं कि किसी भी टेक्नोलॉजी का प्रॉस एंड कॉन्स होता है। इस टेक्नोलॉजी का गुडनेस, गुड एंड बैड डिपेंड्स ऑन द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द टेक्नोलॉजी। यानी कि कमिंग फ्यूचर आपके माइंड को कंट्रोल किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए आज के डेट में आपके पास स्मार्टफोन है, स्मार्ट क्लॉक है, स्मार्ट वॉच है आपके पास। अब एक चीज सवाल मेरे ध्यान पे आ रहा है, तो लास्ट में आपसे पूछूंगा सवाल कि ये स्मार्ट क्यों बोलते हैं? आज के डेट में नया कंसेप्ट आया, बहुत पॉपुलर हो रहा है, स्मार्ट क्लासरूम, स्मार्ट सिटी, स्मार्ट विलेज, स्मार्ट वॉच। इट इज सेट, इसको हम डिस्कस करेंगे इन द डिबेट सेक्शन एंड द डिस्कशन सेक्शन। अब देखिए माइंड को कैसे कंट्रोल किया। अभी भी आज के डेट में आपके माइंड को कंट्रोल किया जा सकता है। हमने कहा कि डेटा मोर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो अगर आपके माइंड पे हम डेटा बार बार एक ही चीज भर दें, सोशल मीडिया के जरिए या टीवी के जरिए, तो आप झूठ को भी सच मान लेते। यानी कि हमने आपको माइंड को कंट्रोल किया। अभी तक डेटा के जरिए कंट्रोल हो रहा था। अब डिवाइस बनने जा रहा है, दैट डिवाइस से एक सिग्नल देंगे। जैसे एक एग्जांपल देते हैं, मान लीजिए हस्बैंड वाइफ है, वाइफ को कोई सामान खरीदना है और हस्बैंड चाहते हैं कि वो सामान को ना खरीदा जाए क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है, लेकिन बोल भी नहीं सकते। तो एक ऐसा अपने सिग्नल भेजे उनके माइंड पे, और ऐसा सिग्नल दिया कि ये सामान आपके लायक नहीं है, ये अच्छा नहीं है, तो थोड़े ही देर में उनका माइंड चेंज हो जाएगा। अगर यार छोड़ो, नहीं खरीदते, ये अच्छा नहीं है, चलिए पॉजिटिव हो गया। अगर निगेटिव में कर लिया तो फिर वो डेंजरस है। स्टूडेंट है, कोई कहता है बार बार आपको डिस्टर्ब कर, चलो चाय पीने, सिग्नल दे दिया कि चाय पीना सेहत के लिए हानिकारक है, तो नहीं छोड़ो, चाय नहीं पीनी। लेकिन अगर इसका बैड डायरेक्शन में यूज हो जाए तो बड़ी डेंजरस होगा। इसलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे मेरा अपना मानना है कि देयर शुड बी ए रेगुलेशन इन द कमिंग फ्यूचर एंड all government should make a regulation on the artificial intelligence, otherwise it will be very disaster in the coming future, जो मुझे फील होता है इसका। अब हम कहते हैं कि ठीक है, हम मशीन को तो ब्रेन दे दिया, लॉजिक दे दिया थिंक करने के लिए, क्या उसको इमोशन दे सकते हैं? यस, नाउ इट इज पॉसिबल अकॉर्डिंग टू रिसर्च। मशीन को भी आप इमोशन दे सकते हैं। मशीन कैन बिहेव लाइक ए ह्यूमन बीइंग, सुख में हंसेगा, दुख में रोएगा, इस तरह का कंसेप्ट आ जाएगा। दैट 14% राइट नाउ। तो ये था ब्रीफ अबाउट द एआई, जो करंट प्रेजेंट में क्या चल रहा है, डेवलपिंग में क्या है एंड फ्यूचर में क्या है। अब देखिए हमने 4 स्टेप बताया था आपको ह्यूमन बीइंग का कि काम करता है। अब देखिए उस कंसेप्ट को थोड़ा बहुत यूज हो रहा है जो सिंपली मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग का लोग यूज करते हैं, जैसे नैरो एआई का। कि सबसे पहला स्टेप होता है प्रोसेस में डेटा जनरेटेड, यानी ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा आर जनरेटेड फॉर द ईच फील्ड, चाहे वो कॉमर्स का हो, बिजनेस का हो, या मेडिकल साइंस का हो, या सोशल साइंस का। एवरीवन आर डूइंग द रिसर्च राइट नाउ ऑन द डेटा। कुछ लोग प्राइमरी डेटा पे काम करते हैं, कुछ लोग सेकेंडरी डेटा पे काम करते हैं। या तो आप डेटा को जनरेट करते हैं
या डेटा को कलेक्ट करते हैं या ऑलरेडी डेटा अवेलेबल से उसको हम यूज करते हैं। वो डेटा आपका स्ट्रक्चर है, अनस्ट्रक्चर है, चाहे वो वीडियो है, वह टेक्स्ट है, रो कॉलम में है या ग्राफ है डेटा है। अगर हाई वेलोसिटी में डेटा आ रहा है, आपका वैरायटी ऑफ डेटा है, वेरियस कैटेगरी का डेटा है एक साथ, उसको हम बिग डेटा कहते हैं। उसके बाद क्या होता है कि डेटा को स्टोर करना है। तो डेटा देखिए आपने ना पहला करिए अटेंशन था, वहां डेटा रिसीव कर रहे थे, उसके बाद आप क्या किया, डेटा को स्टोर करना है। तो डेटा इज स्टोर्ड इन द डेटाबेस एंड सर्वर, यानी कि इस सारे स्टेप वहां प्रोसेस करते हैं और प्रोसेस करने के बाद हम डेटा को फिर क्या करते हैं, डेटा प्रोसेसिंग करते हैं, प्रोसेस द डेटा यूजिंग द सीपीयू और जीपीयू और एआई एल्गोरिथम एंड देन फाइनली इन एक्सेसिबल साइट। ये चारों को टर्मिनोलॉजी बदला हुआ है, 4 स्टेप वहां था, से उसका थोड़ा सा पार्ट यहाँ लिया है, कंप्लीट नहीं लिया गया है। जब कंप्लीट ले लेंगे तो दैट विल वर्क एज ए ह्यूमन बीइंग। यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पार्ट को, 2 पार्ट को लेकर इसको प्रोसेस हो रहा है, जो आज के डेट में लोग अपने रिसर्च में इसको यूज कर रहे हैं। यानी कि डेटा जनरेट, डेटा स्टोर, डेटा प्रोसेस एंड एक्सेसिबल इन साइट, यानी प्रिडिक्टिव सिग्नल्स आर जनरेटेड। ये बहुत नैरो में यूज हो रहा है, बहुत जनरल और स्ट्रॉन्ग में नहीं हो रहा है, जो मैंने कंसेप्ट बताया। लेकिन आने वाले दिनों में जनरल एआई और स्ट्रॉन्ग एआई में जब यूज शुरू हो जाएगा तो बियॉन्ड द ह्यूमन बीइंग काम करना शुरू कर देगा वो मशीन। अब ये देखिए आज के डेट में जनरली पीपल आर यूजिंग द डीप लर्निंग एंड द मशीन लर्निंग। डीप लर्निंग एंड मशीन लर्निंग आर द सबसेट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कंप्लीट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है, उसका कुछ पोर्शन जो हमने दिखाया आपको यूज किया जा रहा है और इन द फील्ड ऑफ रिसर्च इन एनी फील्ड। अब देखिए मैं कुछ सर्वे दिखा रहा हूं कि डेटा कैसे जनरेट हो रहा है एंड व्हाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज मोर पॉपुलर। हम डेटा आपको दिखा रहे हैं 2016 से लेकर 2023 तक दिखाऊंगा डेटा। आप सब लोग व्हाट्सएप यूज करते हैं, गूगल का यूज करते हैं, यूट्यूब का यूज करते हैं। तो 2016 में 1 मिनट में 20.8 मिलियन मैसेज सेंट इन द वर्ल्ड। अब सोचिए कि 1 मिनट में यानी कि 60 सेकेंड में 20.8 मिलियन डेटा ट्रांसमिट हो रहा वर्ल्ड में, तो 1 घंटा में कितना हो जाएगा, 1 दिन में कितना होगा। अब देखिए 1 साल के बाद 2016 में 20.8 मिलियन एंड 2017 में ये बढ़कर हो गया 29.2 मिलियन मैसेज सेंट एवरी मिनट व्हाट्सएप से। तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि 1 दिन में कितने मैसेज पूरे ट्रांसमिट हो रहा है पूरे वर्ल्ड में। अगर हम बात करें यूट्यूब का, देखिएगा 2016 में 2.78 मिलियन वीडियो व्यूज एंड ये जो आया जस्ट डबल, ऑलमोस्ट डबल हो गया 4.1 मिलियन इन 2017। तो यूट्यूब का डेटा आपका जनरेट हो रहा है। इसी तरह से गूगल की बात अगर करें हम तो 2.4 मिलियन सर्च एवरी मिनट एंड दैट बिकम 3.5 मिलियन सर्च एवरी मिनट इन 2017। अब डिफरेंस देखिए इसमें गूगल में, यानी कि नियर अबाउट 1.5 मिलियंस का डिफरेंस हुआ, जबकि यूट्यूब में ऑलमोस्ट डबल का होगा। इसी तरह से आप कंपेयर करेंगे और सोशल मीडिया, फेसबुक आपका है एटसेट्रा, तो ये डेटा हमारा जनरेट हो रहा डे बाय डे। 2016 से स्टार्ट किया। अब देखिए 17 और 18 में क्या हुआ कि हम बात करें अगर इसकी यूट्यूब की, तो नोटिस कीजिए आप, अब 4.1 मिलियन से हमारा यूट्यूब बन गया 4.3 मिलियन। अब ज्यादा डिजिट में, पॉइंट से पहले डिजिट नहीं चेंज हो रहा है। अब नोटिस कीजिए आप कि 4.1 मिलियन एंड देन 4.3 मिलियन, यानी कि 0.2 मिलियन। और ये नोटिस कीजिएगा कि कंटिन्यूअसली 0.2 मिलियन का डिफरेंस होगा। इसका रीजन क्या है, क्यों हो रहा है ऐसा, मैं बताऊंगा आपको। आप गूगल को देखिए, 2017 में 3.5 मिलियन सर्च क्वेरी था और 3.7 हो गया मिलियन इन 2018, यानी कि यहाँ पे जो डिफरेंस आया 0.2 का डिफरेंस आया। नोटिस कीजिए, यहाँ पे नोटिस करने की बात है कि 3.5 एंड 3.7, यहाँ पे भी 0.2 मिलियन का डिफरेंस है। इसी तरह से अगर हम बात करें आगे कि अब देखिए गूगल का हो गया 3.8 मिलियन सर्च एंड देन 4.1 मिलियन। अब यहाँ पे भी डिफरेंस कितने की हो रही है, नियर अबाउट 2.2 एंड समथिंग। बट in the case of YouTube,
4.5 मिलियन इन 2019 एंड 2020 में 4.7, यहां पे भी 0.2 मिलियन। अब यहाँ पे एक सवाल है कि YouTube पे कॉन्स्टेंटली 0.2 मिलियन डेटा चेंज हो रहा है, तो आप कह सकते हैं 0.2 मिलियन जो नए बच्चे होते हैं, जो जन्म लेते हैं, जो यूज नहीं करते हैं, अंडर एज होते हैं, इसका मतलब कि मैक्सिमम पीपुल इन द वर्ल्ड यूजिंग द यूट्यूब। आप में से कोई एक ऐसा इंसान नहीं होगा जो यूट्यूब का यूज नहीं करता होगा, जो लोग यहाँ इस लेक्चर में हैं। तो वर्ल्ड में मैक्सिमम पीपुल स्टार्टेड यूजिंग द यूट्यूब। एक वक्त था कि पेरेंट्स बच्चों से पूछते थे कि बेटा क्या बनना है, तो बच्चों में का जवाब आता था डॉक्टर या इंजीनियर बनेंगे या आईएएस ऑफिसर बनेंगे। लेकिन आज के बच्चों से बात आप करें, आप पूछेंगे कि बेटा क्या बनना चाहते हो, तो सिंपली सवाल देगा यूट्यूबर बनेंगे, इन्फ्लुएंसर बनेंगे, क्योंकि उसको पता है कि छोटे छोटे बच्चे भी देख रहे हैं कि यूट्यूब से ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी पीपल कैन अर्न। उसमें आपका इंटरटेनमेंट भी है, इंटरेस्ट भी है और पैसा भी कमा रहे हैं। मेहनत कुछ ज्यादा नहीं है उसमें, जबकि पढ़ाई में बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ता है, बहुत सारी चीजें कंपटीशन देनी होगी। इसमें तो आपका अपनी क्रिएटिविटी है और नया नया चीज बनाइए और यू विल बी द पॉपुलर। आप एक इंजीनियर, एक डॉक्टर उतना पॉपुलर नहीं होगा जितना कि एक यूट्यूबर इज मोर पॉपुलर इन द वर्ल्ड और अच्छा काम कर रहा है। इसीलिए इसका डेटा जो है कांस्टेंट जा रहा है और सब लोग यूज कर, मैक्सिमम पीपल आर यूजिंग। अब देखिए हम 20 और 21 का कंपेयर करते हैं, तो 21 में भी अब आपका डेटा बढ़ गया है 5। और YouTube का जो डेटा थोड़ा सा 20 में इसलिए बढ़ा कि लॉकडाउन का पीरियड था 20 और 21 में, तो जो लोग घर पे बैठे हुए थे सबसे ज्यादा YouTube का यूज कर रहे थे, गूगल का यूज कर रहे थे, फेसबुक का यूज कर रहे थे। फेसबुक का कम कर रहे थे, व्हाट्सएप, जीमेल का इस्तेमाल कर रहे थे। अब यहाँ पर देखिए बात करते हैं 2023 और 2022 के जो कंपेयर अगर हम करें तो 3.6 मिलियन था यूट्यूब, और यहाँ पे आ गया हमारा इस पे 2023 में भी आप देख सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे इंस्टाग्राम पे भी आपको 10.4 मिलियन है, गूगल पे 2.4 मिलियन है। तो ये सब आपने हम दिखाया कि इतना ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा जो है जनरेट हो रहा है। तो जब इतना ज्यादा डेटा हमारा जनरेट हो रहा है, हम एक दो का एग्जांपल दिया, अपने स्क्रीन पे देख रहे हो, बहुत सारे मीडिया है, मीडिया सोर्सेज है जहां से डेटा आ रहा है। इसीलिए हमारा ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मोर पॉपुलर हो गया। अब मैं आपको एक्सपेक्टेशन बता दूं थोड़ा सा कि नंबर ऑफ डिवाइसेस कनेक्टेड जो हो रहे हैं हमारे, कि 19 में 1990 में था 0.3 मिलियन एंड 20 में आ गया ये 20.6 मिलियन एंड 2025 का जो हमारा प्रोजेक्शन है 1.0 ट्रिलियन। अब एक सवाल है यहाँ पे, आप लोग फेस कर रहे होंगे, सवाल ये है कि जो नॉर्मल कॉल करते हैं तो नेटवर्क प्रॉब्लम आने लगता है, कम्युनिकेशन सही से नहीं हो रहा, जबकि पहले बहुत सही से कम्युनिकेशन हो रहा था। आज के डेट में व्हाट्सएप से कम्युनिकेशन इजी हो गया है आज का कंपेयर टू द नॉर्मल कॉल। बट व्हाई, इसको भी हम डिस्कशन सेशन में इस पर डिस्कस करेंगे, क्यों ऐसा हो रहा है अभी बताएंगे। अब देखिए जो वर्ल्ड का जो सिनेरियो है बिग डेटा का, कि पूरे डेटा कितने जनरेट हो रहा है पूरे वर्ल्ड में, यानी कि नॉर्थ अमेरिका में ग्रेटर देन 3500, यूरोप में ग्रेटर देन 2000, चाइना में 250 पेटाबाइट, जापान में 400, मिडिल ईस्ट में ग्रेटर देन 200, लैटिन अमेरिका ग्रेटर देन 50 एंड 50 इन इंडिया, 50 पेटाबाइट इंडिया में डेटा बहुत कम जनरेट हो रहा है, क्योंकि आने वाले दिनों में जब सब कुछ डिजिटल हो जाए तो बहुत सारा डेटा जनरेट होगा। अभी भी इंडिया में डेटा कम जनरेट हो रहा है। और यहाँ पे जो कम्युनिकेशन हो रहा था ना, पीपल टू पीपल कम्युनिकेशन से डेटा जनरेट हो रहा है, पीपल टू मशीन, इसको कहते हैं वैरायटी ऑफ डेटा, यानी कि अब आज के डेट में हम मशीन से भी बातें करने लगते हैं। जैसे आप नोटिस कीजिएगा, किसी साइट पे सर्च करेंगे तो फौरन एक मैसेज आता है, हाय हाउ कैन आई हेल्प यू, तो दैट इज मशीन। सो यू आर गोइंग टू कम्युनिकेट विद द मशीन and then again machine communicate to each other just like a human being, and 2.9 million emails sent every second। तो ये सारे जो डेटा है आपका,
देखिए कि ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा जनरेट इन द वर्ल्ड एंड देन द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंसेप्ट इज इंप्लीमेंटेड। अब इसकी वजह से पूरे सोसाइटी में एक नया फील्ड ऑफ रिसर्च ओपन हो गया है जिसको कहते हैं फील्ड ऑफ डेटा साइंस। कई यूनिवर्सिटी ने डिपार्टमेंट ऑफ डेटा साइंस ओपन कर दिया, मास्टर इन डेटा साइंस ओपन कर दिया है। तो आने वाले दिनों में कई जगह पे डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिपार्टमेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शुरू हो गया। अभी स्टार्ट हो गया है इंडिया में भी, जबकि 2015-16 में यूएसए और यूके में काफी एमएस चल रहा था, एमएस इन डेटा साइंस वहां पे चल रहा था, लेकिन इंडिया में अब इसका प्रचलन शुरू हो गया कि हर यूनिवर्सिटी एक कोर्स ओपन करने जा रहे हैं जिसका नाम है डेटा साइंस, डिपार्टमेंट ऑफ डेटा साइंस। और इसमें ह्यूज अमाउंट ऑफ जॉब आने वाला है। अभी तो कम है लेकिन एक्सपर्टीज नहीं है इसलिए जॉब कम है, लेकिन 1-2 साल के बाद ह्यूज नंबर ऑफ जॉब इज गोइंग टू बी जनरेटेड इन द वर्ल्ड। तो ये फील्ड बहुत ही पॉपुलर होगा। बाकी जो कंप्यूटर साइंस का फील्ड है वो डाउन होगा ड्यू टू इंडस्ट्री 4.0, और ये डेटा साइंस का फील्ड जो है बहुत ही आगे जाएगा। अब देखिए जो हम डेटा जो है उसको एनालिटिक्स करते हैं, किसी भी फील्ड का आप है तो उस डेटा को आप एनालिटिक्स करते हैं। तो जब हम एनालिटिक्स करते हैं तो 4 तरह के एनालिटिक्स होती है। एक को कहते हैं डेस्क्रिप्टिव, सेकंड को कहते हैं डायग्नोस्टिक, थर्ड को कहते हैं प्रेडिक्टिव एंड फोर्थ को कहते हैं प्रेस्क्रिप्टिव। ये 4 तरह के डेटा एनालिटिक्स होती है। अगर आपके पास डेटा है और आप जानना चाहते हैं कि इस डेटा पे आपको डिसीजन लेना है, एनालिटिक्स करना है, एनालाइज करना है डेटा को, तो किस तरह के डेटा एनालिटिक्स की जरूरत होगी। तो सबसे आसान तरीका मैं बताऊं आपको, जो डेटा है ना उसमें आप कहिए, अगर आप जानना चाहते हैं व्हाट हैपेंड, अगर व्हाट हैपेंड का आंसर जानना चाहते हैं उस डेटा से, तो आपको यूज करना होगा डेस्क्रिप्टिव डेटा एनालिटिक्स, डेस्क्रिप्टिव बिग डेटा एनालिटिक्स। यानी कि आप चाहते हैं कि व्हाट हैपेंड, you want to get the answer of this question, then definitely you can go for the descriptive big data analytics. The level of advancement is low right now of descriptive big data analytics. Incorporate AI and machine learning, not usually. Level of popularity used by almost all organizations. अगर आपके पास डेटा है और उस डेटा में आप चाहते हैं व्हाई डिड इट हैपन, अगर मान लीजिए कि कोई एक्सीडेंट हो गया या कोई ऐसा चीजें डिजास्टर हो गया और आप उसका डेटा है आपके पास और आप चाहते हैं कि ये क्यों हुआ, तो वहां पे आपको डायग्नोस्टिक डेटा एनालिटिक्स यूज करना होगा। एंड डायग्नोस्टिक डेटा एनालिटिक्स का जो लेवल ऑफ एडवांसमेंट है वो मीडियम है। इनकॉर्पोरेशंस ऑफ एआई एंड मशीन लर्निंग इज समटाइम्स, कभी कभी यूज होता है, एंड यूज बाय मेनी ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपके पास डेटा है, आप चाहते हैं जानना व्हाट विल हैपन नेक्स्ट, अब उस डेटा को लेकर, जैसे जनरली इस एनालिटिक्स को स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन यूज करते हैं, बिजनेस में यूज होता है कि अपना प्रॉफिट और बेनिफिट को लेने के लिए कि व्हाट विल बी नेक्स्ट जानने के लिए, तो आप यूज करेंगे predictive data analytics. Level of advancement is high. Incorporate AI and machine learning, that is usually. Level of popularity used by a small but growing group of organizations. उसके बाद लास्ट है हमारा प्रेस्क्रिप्टिव डेटा एनालिटिक्स। अगर आपके पास डेटा है एंड ऑन दैट डेटा you want to know when should I do, if you want to get the answer of this question, then definitely you can go for the descriptive data analytics. And the level of advancement is very high. Incorporation of AI and machine learning is always level of popularity, not widespread. तो ये रहा आपका various type of data analytics according to situation. आपके जो भी रिसर्च का फील्ड है उसमें आप इसको यूज कर सकते हैं। तो बिग डेटा एनालिटिक्स यहाँ यूज करते हैं फॉर कॉस्ट रिडक्शन, फास्टर बेटर डिसीजन एंड न्यू प्रोडक्ट सर्विसेज। अब हमारे पास टाइम सिर्फ 15 मिनट रह गया है, तो हम आपको 15 मिनट देंगे, क्योंकि 3 जो क्वेश्चन शुरू में किया था उसका आंसर देना है और प्लस डिस्कशन करना है। तो एक हम इसको अब यहीं पे हमें
स्टॉप करते हैं और हम ओपन करते हैं डिस्कशन से पहले मैं उस सवाल का जवाब दूंगा जिस सवाल को मैंने शुरू में किया था। एक सवाल अब हमारे ध्यान पे है और भी आप उस पे आपका ओपिनियन में लेना चाहूंगा इस डिस्कशन के दौरान। एक दुकानदार एक कुरकुरे को 10 रुपए में बेचता था क्योंकि वो 9 रुपए में खरीदता था, 1 रुपया बेनिफिट लेता था। 1 रुपये में अपना किराए का, मकान का किराया, दुकान का किराया और बिजली का बिल देता था, उसी में से अपना बेनिफिट लेता था। उसी के बगल में एक नया दुकानदार आया और उसने उसी कुरकुरे को 9 रुपए में बेचने लगा। तो सोचिए वो नए दुकानदार को क्या फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा? फायदा तो हो रहा है, लेकिन कैसे? इस सवाल का जवाब आप लोग सोचिएगा, इस डिस्कशन में करेंगे। तो चलिए हम अब सवाल का जवाब देते हैं आपको। जो पहला सवाल मैंने किया था शुरू में, अब इस टेक्नोलॉजी को समझने के बाद उसका आंसर आपको आसानी से समझ में आ जाए कि आप दिल्ली में काम कर रहे थे और घर पे मोटर ऑन करके छोड़ दिए थे, तो वहां पे जो टेक्नोलॉजी यूज होगा आईओटी टेक्नोलॉजी। आईओटी क्या है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जो इंडस्ट्री 4.0 का एक कंपोनेंट है, यूज होता है। और आज के डेट में आप देखिएगा मशीन भी आ रहे हैं, वॉशिंग मशीन, आपका एसी, मोटर, सब कुछ पे लिखा होता है आईओटी एनेबल्ड। यानी उसको, उस डिवाइस को, उस अप्लायंसेस को, उस मोटर को, उस एसी को आप अपने मोबाइल से कॉन्फ़िगर कर सकते, कनेक्ट कर सकते। तो आप अपने ऑफिस में बैठे ही अपने घर के अप्लायंसेस को कंट्रोल कर सकते हैं, यानी मोटर को ऑन कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं, एसी को ऑन कर सकते हैं। बहुत सारे लोग ऑफिस से निकलते वक्त अपने घर के एसी को ऑन कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ योर स्मार्ट मोबाइल फोन। तो यहाँ पे ये टेक्नोलॉजी आपके रियल लाइफ प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। दूसरी प्रॉब्लम मैंने बताई थी आपको कि आप ऑफिस से जैसे ही घर पहुंचे, घर पहुंचते ही आपके फैमिली मेंबर की तबीयत खराब है, आप प्लानिंग कर रहे थे हॉस्पिटल जाने के लिए, उसी दौरान बॉस का फोन आ गया कि आपको ऑफिस आना है, तो या तो आप ऑफिस जाएं या हॉस्पिटल जाएं। यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी यूज होगा वो क्लाउड कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी का यूज होगा, जिसके जरिए आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। जब बॉस का कॉल आए, आप कुछ नहीं करना, आप अपने पेशेंट को लेकर हॉस्पिटल जाइए और आपके पास स्मार्ट मोबाइल फोन है। आप अपने बॉस से बोलिए कि सर जो आप बुला रहे हैं ऑफिस, बताइए काम, आपका काम यहीं से कर देंगे। उन्होंने कहेंगे एक लेटर था मुझे चाहिए, या उसमें टाइप करना है या मॉडिफाई करना है। आपका वो डेटा आपका गूगल ड्राइव पे है, क्लाउड में है। आपने अपने पेशेंट को एडमिट किया, एडमिट करने के बाद यू आर फ्री, यू हैव ए मोबाइल फोन, स्मार्ट मोबाइल फोन। With the help of mobile phone, you can do your work and then ask your boss and give the print command. Your boss printer having the printout, वहां से प्रिंट आउट लेके फिर से फोन से बात करेंगे। ये कंसेप्ट जनरली आज के डेट में इंडस्ट्री में यूज हो रहा है, वर्क फ्रॉम होम। और यही कंसेप्ट हम लोगों ने यूज किया था अपने लॉकडाउन में, और अभी जो हमें गूगल मीट का यूज कर रहे हैं, दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, कि आप लोग डिफरेंट लोकेशन से बैठे हुए हैं और मैं दिल्ली में बैठकर आपको लेक्चर दे रहा हूं। तो दैट इज द ब्यूटी ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। तो यहाँ पे क्लाउड कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है। तीसरा जो प्रॉब्लम हमने दिया था आपको रियल लाइफ, कि एक कोई फीमेल लेडी रिलेटिव एट योर होम, यू आर इन ऑफिस, वहां पे भी आप आईओटी बिग डेटा का यूज करके आप स्मार्ट डोर लगाएंगे, एक मोबाइल एसएमएस देंगे, आपका डोर ओपन होगा, योर लेडी मेंबर विल इन योर हाउस एंड देन इट विल बी लॉक। तो देखिए ये टेक्नोलॉजी का यूज आज के डेट में, ये सब इट पार्ट ऑफ इंडस्ट्री 4.0 एंड आने वाले दिनों में बहुत सारे एडवांसमेंट होना शुरू हो रहा है इस टेक्नोलॉजी में, और देखिएगा इंसान की लाइफ इजी हो जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ कई तरह की नौकरियां जाना शुरू हो जाएगी। तो अब इस फील्ड में जो लोग जाएंगे उनकी नौकरियां बढ़ जाएगी। तो ये है रियल लाइफ एप्लीकेशंस। ये हमने 3 एग्जांपल दिया, इससे और भी ज्यादा एग्जांपल दिया जा सकता है। अब मैंने एक सवाल किया आप लोगों से, अब हमारा टाइम है डिस्कशन का, कि कुरकुरे वाला एग्जांपल दिया तो किसी के जहन पे आइडिया है कि वो कैसे उसको बेनिफिट हो रहा है? ये पहले बताइए, फिर आपका क्वेश्चन हमें दीजिएगा। Yes, sir. If the amount is less, जी, that means he is selling the kurkure in 10 rupees and he is at 9 rupees. Yeah. But amount he has reduced it, so he Yep. will get profit. तो जब रिड्यूस हो गया तो उसको मान लीजिएगा कि वो 9 रुपए में खरीद कर 10 रुपए बेचता था,
उसी कुरकुरे को 9 रुपए बेचे, उसको फायदा कैसे हुआ? सर वो ऑनलाइन में सर बेच रहा है, सेल दुकान ज्यादा होगी 9 रुपए में, अगर वो सुधा मैडम ने कहा कि सेल ज्यादा होगा, जी लेकिन सर, सेल कितने भी करे, 10 रुपए खरीद कर 10 रुपए बेचेंगे तो फायदा क्या होगा? वो ऑनलाइन में बेच रहा था, उसका मकान दुकान वो सब का भाड़ा नहीं देना पड़ रहा है इसलिए सर। तो यानी कि सोशल सर्विस करेंगे कोई बेनिफिट नहीं होगा। आप सोच लीजिए कुछ दुकान में हो सकता है एक सामान के चक्कर में और सामान बेचते तो सिर्फ कुरकुरे का ही दुकान था, सिर्फ कुरकुरे का ही दुकान था, ऑनलाइन की बात नहीं कर रहे। जी होलसेल में लेने का सामान कुछ कम दाम में मिल जाता है। नहीं है, सवाल ये है कि एक ही दुकान है, उस दुकान में सिर्फ प्रोडक्ट ही कुरकुरे का है। अब पहला दुकानदार 9 रुपए में खरीदता था, 10 रुपए बेचता था, तो दूसरा दुकानदार वहां पे उसी कुरकुरे को 9 रुपए में बेचने लगा, तो क्या उसको फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है? नहीं होगा सर क्वांटिटी या क्वालिटी में फर्क हो सकता है। नहीं होगा सर, क्योंकि एक ही जगह पर बहुत क्वालिटी जब इकट्ठी मिलेंगी तो वहाँ पर फायदा होगा। सर क्वांटिटी और क्वालिटी में भी फर्क हो सकता है। बहुत बढ़िया, आप आंसर के नियरेस्ट पहुंच चुके हैं। क्वालिटी में कोई नहीं। अब देखिए, और भी कोई आंसर है किसी के पास? मैं बताता हूँ इसका आंसर। सर वो कहीं इम्प्लीमेंटेशन में कहीं ना कहीं वो कुछ यूज कर रहा है जो जिसको वो बचाएगा अच्छा, और फिर वो बेचेगा। ओके, और आंसर? जय प्रकाश जी बताइए। सर हो सकता है मात्रा में कुछ कमी कर दे, ओके, मात्रा में कमी कर दें और उसी प्राइस पे बेचे। और सर वो कम रुपए में खरीद के लेके आ रहा है और 9 रुपीज में सेल कर रहा है, दैट कुड बी द पॉसिबल। ओके, और कोई आइडिया? प्रोडक्शन कास्ट कम हो गई होगी नहीं हाउ उसकी प्रोडक्शन कास्ट कम हो सकी है मशीन की यूज सर से। एक सेलमैन है, दुकानदार। सर ब्रांडिंग का भी फर्क हो सकता है, ब्रांड का फर्क हो सकता है सर। किसका? ब्रांड उनका अलग हो मतलब। ना ब्रांड तो कुरकुरे है, सेम ब्रांड, सेम चीज, सेम फैक्ट्री, सब कुछ सेम। सर डायरेक्ट कंपनी से ला सेलिंग रहा है। वेज ही अलग होगी, सेलिंग वेज ही अलग होगी, जो बेच रहा है उसका कुछ तरीका ही डिफरेंट होगा। So the person who sell the at 9 rupees will more popular and more selling, and then his business will be safe. लेकिन उसको बेनिफिट तो 1 साल होगा, 2 साल होगा, कम से कम 10 पैसा भी फायदा होता तो ज्यादा हो जाता। आपने पार्ले जी देखा बिस्कुट? एक्सक्यूज मी सर। पार्ले जी, हेलो हाँ जी, अरुण साहब सर, बोलिए। हो सकता है, हाँ सर, उसने हो सकता है वो फ्लिपकार्ट और अमेजन वाला जो मॉडल हो अपनाया हो, कुछ दिन तक तो लॉस रहेगा, फिर वो जब वो बगल वाले को पूरी तरह से खत्म कर देगा, बगल वाले दुकानदार, क्योंकि वो बहुत दिन तक तो लॉस को सह नहीं पाएगा, तब वो उस मॉडल को अपनाएगा कि वो फिर 10 साढ़े 10 रुपए मोनोपोलाइज हो जाएगा मामला। ओके, पहले तो 9 लॉस में जाएगा, जैसे जी बताएं। जी सर जी, पहले तो लॉस में वो बेचेगा, जो लॉस है 9 to 9 मतलब 9 में खरीद रहा है 9 में ही बेच रहा है, मतलब वो जीरो प्रॉफिट पे अपना काम करेगा, जैसे आजकल कंपनियां करती हैं, जैसे फ्लिपकार्ट और अमेजन या जो किसी मॉडल को शुरू में सर यही किया, बाद में इन्होंने क्या किया कि जब उनकी मोनोपोली हो गई, जैसे बगल जो 2 शॉप आपने एग्जांपल दिया, उसमें जब दोनों ने उसने क्या किया कि उसके पहले तो लॉस में उसने बेचा, तो बगल वाला बहुत दिन तक, जैसे जियो के साथ हुआ, जियो और एयरटेल वाला जो मामला चल रहा है, या और कंपनियां हैं, एक कंपनी कैसे मोनोपोलाइज कर जाती है, पहले लॉस में जाती है, पहले जीरो प्रॉफिट पे, फिर धीरे धीरे क्या करती है, वो प्रॉफिट को गेन करती, सामने वाले को हटा के या किल करके, फिर वो अपनी मोनोपोली स्थापित करके फिर अपने हिसाब से वो चीजों को बेचती है। सर मेरा तो समझ यही है जो, बिल्कुल, इसलिए मैंने आइडिया लेना चाहा है। और भी किसी को आइडिया देना है? Sir, he will earn goodwill. जी बताया शिवलाल जी। Sir, he will earn goodwill when he sell at 9 rupees purchase, 9 rupees sells, and then we profit in future. ओके, चलिए अब मैं
इसका आंसर देता हूं। आपने पार्ले जी देखा है? Okay, sir. पहले पार्ले जी देखा होगा, अब पार्ले जी देखा है? पार्ले Yes, जी sir. की बात कर रहा यस हूं। सर, Yes, sir. क्वांटिटी कम हो गई। हाँ, और आपने फ्रूटी देखा? Yes, sir. यस सर, ओके। Sir. उसने क्या किया, अब मैं बता रहा हूं आपको। उसने बिग डेटा टेक्नोलॉजी का यूज किया, डेटा एनालिटिक्स का यूज किया। जो पहला दुकानदार दुकान चल रहा था, तो दूसरा जो दुकानदार जो है, दुकान ओपन करने से पहले 1 महीने तक डेटा कलेक्ट किया कि जो कंज्यूमर आ रहे हैं उनका बिहेवियर क्या है, यानी वो प्रोडक्ट को लेने से पहले क्या क्या पैरामीटर को चेक करते हैं। कुछ सारे डेटा को कलेक्ट किया 1-2 महीने तक। उसके बाद उस डेटा को एनालाइज किया, और एनालाइज करने के बाद उसको ये पता चला, फाइंडिंग्स ये मिली कि जितने भी लोगों ने सामान को खरीदा सिर्फ प्राइस को देखा है, किसी ने क्वांटिटी पे ध्यान नहीं दिया। उसका रिजल्ट आया कि इस एरिया में जितने भी लोग सामान खरीदने आते हैं सिर्फ प्राइस को देखते हैं और क्वांटिटी को कोई नहीं चेक करता। तो उसके दिमाग में एक आइडिया आया। आइडिया ये आया कि 10 ग्राम 10 रुपए 9 ग्राम 9 रुपए में दे रहा है, तो या 10 ग्राम 9 रुपए में दे रहा है, 1 रुपए फायदा हो रहा था। वो जाने गया और कंपनी से बात किया कि भाई इसको आपको कस्टमाइज करना है, अगर आप 10 ग्राम 9 रुपए में दे रहे हैं तो मुझे 9 ग्राम दीजिए 8 रुपया में। यानी 1 ग्राम कम होने से उसके कुरकुरे के साइज पे कोई फर्क नहीं पड़ता, देखने में बिल्कुल सेम लगेगा आपको। ये डालना है। उसने क्या किया, उस 9 रुपीज को 8 रुपए में लिया एंड 9 रुपए में बेचा, फिर भी वही बेनिफिट हो रहा है जो पहले दुकानदार को हो रहा था। यानी कि बिजनेस स्ट्रेटजी इसको कहते हैं। तो बिजनेस स्ट्रेटजी बनाया ड्यू टू द आउटकम ऑफ डेटा एनालिटिक्स। तो बिजनेस में वही इंसान सक्सेस होता है जिसके पास एक नया आइडिया होता है, दैट इज नॉट विथ अदर पीपल। समझ में आ गया? इस तरह से Yes, फायदा sir. होता है। यस सर, थैंक और यू। Yes, sir. बकायदे Thank you, यस sir. सर, हैं? थैंक यू सर। Thank you, sir. समझ में आया आंसर? Very nice, sir. Very Very nice. nice. Presentation it was, and Thank very you, very sir. interesting, very informative, and we learned so many new things today. Good session, It sir. was Very really good sir session. excellent. Very nice. Thank you very much, sir. Very nice, sir. सर एक्सक्यूज मी सर, Very informative session, sir. मैं वन बाय पूछना वन। चाह रहा था। पहले अरुण जी से हाँ, सवाल सर। लेते हैं, फिर हम रितु मैम चलेंगे। हाँ, सवाल। सर, जो आपने कहा कंज्यूमर बिहेवियर का, ये तो वो प्रोडक्ट जब 1 ग्राम जो आपने बताया अगर इतना कम होता है तब तो बिहेवियरल चेंज है उनमें कि ठीक है, जो कंज्यूमर है, क्योंकि मिडिल क्लास बिहेवियर या इंडियन बिहेवियर भी ऐसा है कि ठीक है थोड़ा चीप में रहे। लेकिन आजकल जो एक नया ट्रेंड जो उसमें एक और चेंज आया है कि इन कंपनियों ने क्या किया है, उसको और पार्ले को और कम किया है, या जो भी वाश बर्तन साफ करने वाले जो साबुन विम बार और उन सब में बहुत ज्यादा कटौती की, तो लोगों का बिहेवियर ये एक और चेंज हुआ है कि वो उसके बड़े पैकेट की तरफ या उसकी तरफ जाते हैं और उसमें फिर उसको कैलकुलेट करते हैं कि हमारा कितना लॉस या प्रॉफिट हो रहा है, उस तरफ भी मूव करने लगे हैं सर। एक ये भी नया चेंज आया क्योंकि हम लोग भी यही कर रहे हैं, तो ये भी चेंज है सर। मैं मतलब ये क्वेश्चन आई आपसे एग्री विथ यू। अब यही मैं आपसे बताया कि जब हम एनालिटिक्स करने के बाद जो रिजल्ट आता है ना, तो जी एक्सपर्ट सर। स्ट्रेटजी क्या है कि हाउ टू अट्रैक्ट द कस्टमर, कंज्यूमर को कैसे अट्रैक्ट करना, वहां पे स्ट्रेटजी का चूक है। जी, वहां पे कंज्यूमर चालाक हो गया, उसने देख लिया, उसको पता चल रहा था, लेकिन पहले वाले में पता नहीं चल रहा था। पहले वाले में तो अगर इंसान कह दे कि मैं सोशल काम कर रहा हूँ, ये लोग तो नो लॉस सब मान जाएंगे, है ना? तो कई जी। चीजें होता है इनविजिबल और कई चीजें होता है विजिबल। तो जब स्ट्रेटजी बनाते हैं तो उसमें होता है कि गुड स्ट्रेटजी इसका, इसीलिए ना आजकल बिजनेस इंटेलिजेंस का कंसेप्ट चला हुआ है इंडस्ट्री जी। में। बड़े बड़े लोगों को हायर करते हैं जो डेटा एनालिटिक्स, इसलिए जॉब बहुत इसमें डेटा एनालिटिक्स का। अब मैं कई एग्जांपल दूंगा कि बड़े बड़े पॉलिटिशियन इस डेटा एनालिटिक्स का यूज करते हैं अपने इलेक्शन में, बहुत सारे बिजनेस में यूज करते हैं, हर जगह पे यूज हो रहा है। लेकिन वहां पे जो स्ट्रेटजी प्लानर जो होता है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आउटकम को लेकर, जो स्ट्रेटजी बनाता है। ठीक है जी, अरुण कुमार जी।
ये सर अमेरिका का पूरा इलेक्शन इसी पे हुआ था सर, पिछली बार जो ट्रम्प जीते थे मैं भी डेटा पूरी एनालिसिस तरह करता हूँ और रिजल्ट निकल जाता, पता चल जाता है। तो जी वहां उसी पे पे पूरा सब जगह आजकल लोग यूज कर रहे हैं इसको। इसीलिए अब जी देखा होगा आपने, हर एक पार्टी का आईटी सेल है। पहले ऐसा नहीं था। जी जी हिंदुस्तान पहले आप जाइए सर 10 हिंदुस्तान में पहले तो इलेक्शन का कहीं टीवी पे इंडिया नहीं में नहीं देखते थे, होता है। इंटरनेट पे नहीं देखते। हिंदुस्तान में आज होता है देखो सर। हर पार्टी का है। जस्ट बस एक एक क्वेश्चन बस मैं पूछना चाह रहा हूँ सर, जैसे अब आजकल क्या है कंज्यूमर जो बिहेवियर है, जो जो भी कंपनियां कर रही हैं वो दो तरह के प्रोडक्ट बना रही है। एक तो मिनिमम जो बेस पे है, जो पैसे पे है, और या उससे बड़ा मिडिल जो वो मिडिल चीजें उन्होंने बनाना लगभग कम कर दिया है सर। एक ये भी चेंज आया है कि बिम का या बिस्किट का जो या तो बड़ा पैकेट वो लेके आ रहे हैं बड़े कंज्यूमर के लिए, और एकदम या तो छोटे लोगों के लिए अलग तरीके से पकड़ रहे हैं, और एक बहुत बड़ा बना रहे हैं कि जो बहुत ऊपर क्लास के व्यक्ति के लिए, और मिडिल वाला जो है वो उन्होंने कम कर दिया है सर। ये एक ये भी देखने में आया सर, हम लोगों ने जो ऑब्जर्व किया है इस पे सर। थोड़ा सा अगर बस एक सेकंड अगर एक आध मिनट आप बताना चाहें तो। देखिए एक्चुअली क्या है ना कि हम इंसान हैं जी और हमारा माइंड बदलता रहता है। कोई चीज आज आपको पसंद है, कल को आपको नहीं आएगा पसंद। कि हर चमकते चीजों के तरफ इंसान अट्रैक्ट हो जाता है। तो आपके स्ट्रेटजी में दम होना चाहिए। मान लीजिए आप बताओ, मैं आपको शॉपकीपर और बिजनेसमैन दो वर्ड है, ठीक है ना? तो एक शॉपकीपर और एक जी सर बिजनेसमैन में क्या फर्क है पता आपको? अब मैं बताता हूँ जी बिजनेसमैन और शॉपकीपर में। मान लीजिए कि एक शॉपकीपर क्या करेगा कि अगर 5 किलो संतरा खरीदता है ना 10 रुपया में, तो उस संतरा को शॉपकीपर क्या करेगा, 10 रुपया की जगह 15 रुपए में बेचेगा। ओके, 15 रुपए में 5 किलो को जी 15 रुपए में बेचेगा तो 25 रुपए वो कमाएगा। ये है शॉपकीपर। बिजनेसमैन क्या करेगा, जी 5 किलो आपका संतरा लाया, उसका जूस निकालेगा, और जूस निकालने के बाद उसका पैकेजिंग करेगा। अब उसमें सोचिए 5 किलो में आपको कितना आपका पैकेट बन जाएगा। मान लीजिए एग्जांपल 25 बन गया, और एक पैकेट को 10 रुपए में बेच रहा है, तो सोचिए उसका कितना बेनिफिट हुआ। जस्ट कैलकुलेशन कीजिए आप। उसने क्या किया, उसको जी प्रोसेस सर करके पैकेजिंग किया, और 10 किलो संतरा में आपको 50 पैकेट बना दिया, और एक पैकेट को 10 रुपए 8 रुपए में बेच दिया आपने। तो उसको तो डबल से भी ज्यादा फायदा हो रहा है ना। तो यही जी बिजनेसमैन एंड शॉपकीपर में। जी सर और एक जी आया है नया आज के टाइम इंटरप्रेनर, जी एंटरप्रेन्योर्स है ना? जी सर अब ये भी क्या है, जी एक बिजनेसमैन और इंटरप्रेनर में भी डिफरेंस पता होना चाहिए जी कि क्या फर्क है। और ये कंसेप्ट 2-3 साल से चला, मैं भी इसमें रहा हूं। आजकल है ना एलबीआई और इनोवेशन सेंटर का बहुत पहले से जो आइडिया है गवर्नमेंट का, और आज तो इसको स्टार्टअप है, ये सब कुछ चल रहा है कि हम किसी को 10 रुपया ना दें बल्कि 10 रुपया कमाने लायक बना दें। ये कंसेप्ट है कि अगर आप एक स्टार्टअप करते हैं तो आप 10 लोगों को रोजी देते हैं, लेकिन ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड बिजनेस है, उसके लिए एक नया बिजनेसमैन के लिए बहुत ही टफ होता है। तो एंटरप्रेन्योर करता है, एक नया आइडिया लाता है, तो दैट आइडिया इज नॉट एग्जिस्टिंग एनीवेयर, और नया कंसेप्ट लाता है। तभी देखते हैं मार्केटिंग का बहुत सारे कंसेप्ट आते हैं मार्केट में, और नए नए कंसेप्ट लेकर फिर वो ग्रो कर जाता है। ठीक है ना? तो ये सारे अलग से इससे एंटरप्रेन्योर पे, बिजनेस पे, इंटेलिजेंस अलग से लेक्चर हो सकता है। ठीक है, अब एक मैडम रितु मैडम का सवाल था, उनका लेते हैं। जी रितु मैम, कुछ सवाल आपका था? और भी किसी का कोई सवाल है पूछ सकते हैं? सर हाँ आपका कोई सवाल था? आपका कोई नहीं सवाल था? नो सर। ओके, और भी कोई किसी चैनल पे कोई क्वेश्चन है? यस सर, हेलो। जी बताएं मैम। सर आपने बोला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्ट्रॉन्ग एआई एंड दैट जनरल एआई एंड द नैरो एआई, so could you give me the difference between these three? That means how they are different from each other. देखिए जो नैरो एआई है ना,
हम मशीन को ट्रेन करते हैं, जैसे आपने डीप लर्निंग है, मशीन लर्निंग है, तो इंसान के कैपेबिलिटी से डाउन है वो, जिसको हम नैरो एआई आज के डेट में लोग यूज कर रहे हैं। आप लोग आप भी करते हो। आप किस फील्ड में है मैम? कौन सा फील्ड ऑफ रिसर्च क्या आपका? कंप्यूटर साइंस ही है मेरा। कंप्यूटर साइंस, तब तो कोई बात नहीं। तो आप भी यूज करते होंगे डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग का, यानी छोटे छोटे डेटाबेस पे हम डेटा को ट्रेनिंग करते हैं। जैसे जनरल एआई होगा तो जो इंसान के इंटेलेक्चुअलिटी है ना, ह्यूमन बीइंग की इंटेलेक्चुअल है, तो उस इंटेलेक्चुअलिटी को हम दे सकते हैं मशीन में, जो अभी तक यूज लोग नहीं कर रहे हैं जनरल एआई में। और स्ट्रॉन्ग एआई में बियॉन्ड द इंटेलेक्चुअलिटी इन द मशीन एंड बियॉन्ड द ह्यूमन बीइंग इंटेलेक्चुअलिटी, वो दे देंगे फ्यूचर में। ये डिफरेंस। So sir, अभी strong AI में what are the applications? Is there any? नहीं हो रहा है। Actually, this is the thought. They will further. थॉट है फ्यूचर में, फ्यूचर की बात कर रहा हूँ। जनरल एआई आएगा आने वाले दिमाग में, अगर जैसे ही जनरल एआई आएगा बहुत बड़ा रेवोल्यूशन होगा वर्ल्ड में, इंसान की वैल्यू खत्म हो जाएगी। इसलिए मैंने कहा कि आने वाले दिन में रेगुलेशन होना चाहिए एआई पे। ये फ्यूचर बता रहा हूँ होने वाला है। अभी तक जो आपका देखिएगा चैट जीपीटी 2020 में है ना, इंसान के काम तो कम कर दिया ना। इंसान के जो प्रोग्राम लिखते थे, लॉजिक लगा, जो लगा रहा है ना। Yes sir, even we used to check the code also in ChatGPT. तो अब देखिए जनरल एआई का थोड़ा बहुत यूज होना शुरू हो गया है, यानी कि इंसान का जो हम क्या इंटेलेक्चुअल है, हमारे पास नॉलेज है, उससे सोचते हैं, तो उस इंटेलेक्चुअल की तरह बिहेव करेगा। और जैसे ही जनरल एआई आएगा बियॉन्ड द इंटेलेक्चुअल विल वर्क, उसके बाद आपका सब कॉन्शियस माइंड भी आना शुरू हो जाएगा। जैसे आपके पास सब कॉन्शियस माइंड है ना, वो दैट ऑल विल बी कम इन द फ्यूचर। ये बात हम करते हैं फ्यूचर की। ओके अमीना मैम, क्लियर? ओके सर, यस सर। एनी मोर डाउट, एनी मोर क्वेश्चन? सर एक सवाल था सर। जी बताएं। सर आपने इतने एआई पर बहुत रिसर्च किया है, बहुत आपका नाम है सर, तो सर कब तक ऐसा लगता है कि मशीन हमारे ह्यूमन को इंटरफेस कर देगी, मतलब ह्यूमन से ज्यादा मशीन को ले जाएंगे? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन किया मनोज साहब। मैं इसका एक एग्जांपल कोट करता हूं। अभी रिसेंटली एक कॉन्फ्रेंस में मैं चीफ गेस्ट था, इसी पे मैं बात कर रहा था। एक पार्टिसिपेंट की टीचर जो है रिप्लेस हो जाएंगे विद द एआई बेस्ड मशीन। हमें बात कर रहा था कि फ्यूचर में होगा। मैंने बात किया कि ये होने वाला है। उसमें से एक पार्टिसिपेंट खड़ा हुआ, साउथ का था, कहा कि सर अब कह रहे होगा, होना शुरू हमारे यूनिवर्सिटी में, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में इंप्लीमेंट कर दिया लोगों ने, हमारी नौकरी चली गई। जीता जागता एग्जांपल मैं दे रहा हूं आपको। तो आपका जब देखिए जो एनईपी आया है ना, एनईपी में बहुत लेक्चर दिए, उसमें आपको ये दिया है कि एजुकेशन 4.0, पता है आपको एजुकेशन 4.0 क्या है? एजुकेशन 4. एनईपी पढ़िएगा आप, उसमें फोकस किया गया है पर्सनलाइज्ड एजुकेशन एनईपी में। यानी कि एजुकेशन 4.0 अब चल रहा है। एजुकेशन 4.0 का मतलब कि मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कंसेप्ट यूज होगा उसमें। और आज के डेट में एआई को एजुकेशन, अब एजुकेशन इंडस्ट्री बोला गया, पहले एजुकेशन अलग था, अब हो गया है एजुकेशन इंडस्ट्री। और एजुकेशन इंडस्ट्री में देखिएगा जितनी भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं एआई के यूज करेंगे, क्योंकि उनको मैक्सिमम बेनिफिट चाहिए। तो अगर एक टीचर को 3 क्लास देते हैं तो मशीन को 4 क्लास दे देंगे, वो थकेगा भी नहीं और पढ़ाता रहेगा। अब बनना शुरू हो गया। जैसे एग्जाम्पल आपने लीसा के देखा, तो कई यूनिवर्सिटी ने शुरू कर दिया, जो प्राइवेट, गवर्नमेंट में नहीं, अभी प्राइवेट में शुरू कर दिया, तो ऐसे ऐसे सब जगह हो जाएगा। तो 8-10 साल के अंदर काफी रेवोल्यूशन होगा। मनोज जी क्लियर हो गया? ठीक है, थैंक यू सर। So there is one thing in news, that is that telepathy. That means that chip has been inserted into the human brain. That person Elon Musk, that is in news in recent days. जो आपकी आवाज थोड़ा क्लियर नहीं है, थोड़ा सा बोलिएगा दोबारा। Yes sir, I'm telling that chip has been inserted into the human brain. Nowadays the news is in that Elon Musk, that news I am telling about. मैंने शुरू में कहा था कि फिक्टिशियस चीजें जो है ना, या काल्पनिक चीजें जो है ना, आज के डेट में रियलिटी में आ रहा है। Yes sir. एक ध्यान रखिएगा, अगर पिक्चर देखते हैं आप लोग, कारतूस पिक्चर देखी है आपने? No sir. कारतूस पिक्चर देखिएगा आप। देखिए पिक्चर देखने से बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है, उसमें से अच्छी सी चीजें।
कारतूस पिक्चर में ही दिखाया था, एक सिंगल सा चिप लेता, हाथ मिलाता, उसको बॉडी में डाल देता। ये फिक्टिशियस था उस वक्त, ये करीब मामलों जब स्टूडेंट थे तब पिक्चर आई थी। वो हाथ मिलाया और चिप को बॉडी में डाल दिया, फिर अपने कंप्यूटर से मॉनिटर करो कहाँ जा रहे हैं, है ना? I have not seen that, but I can. बट सब चीज देखो, आज के डेट में साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कुछ भी हो सकता है। ये नहीं कह सकते ये नहीं हो सकता है, बहुत सारी चीजें हो सकता है। अब देखिए ना, आपको मेडिकल साइंस में अगर इसका बहुत यूज हो रहा है, मेडिकल साइंस में आपके ब्रेन के एक एक चीज को देख लेते हैं ना, ऑपरेशन भी करते हैं ना आप, लेजर के थ्रू बहुत सारी चीजें जो है इस्तेमाल हो रहा है। तो न्यूज में आता है, फिक्टिशियस चीजें हो सकता है, कई चीज इंप्लीमेंट हो जाए, कहीं नहीं हो। आइडिया है आपका, आइडिया इंप्लीमेंटेशन का टाइम वो सक्सेस होगा या नहीं होगा अलग बात है, लेकिन जो चीज हम सोचते हैं वो हो भी सकता है। ठीक है मैम? Yes, sir. Yes. एनी मोर? Yes, sir. Sir, my name is Aminuddin Ansari. Sir. Raja PG College, Rampur. आप किस फील्ड से हैं? Sir, Government Raja PG College, Rampur, Economics Department. इकोनॉमिक्स, वेरी गुड। इसलिए मैं सब फील्ड को ध्यान में रखा है हमने। चलिए तो सर अभी जैसे एज एन एप्लीकेशंस ऑफ द 2-3 चीजों के एप्लीकेशंस पे स्टडी कर रहे थे, तो हमें फ्यूचरिस्टिक अप्रोच में ये समझ में आया कि जो रोबोटिक्स आज के समय में यूज हो रहा है, कल उसके इस पर यूज पे जब जाएंगे तो जहां तक कि जो हमारा लेबर मार्केट में जो लेबर यूज हो रहे हैं, जैसे टास्क के लिए, जैसे अगर आप घर बनवाते समय जैसे जो लेबर यूज करते हैं, जो आपको ईटा उठा के एक दर पे दूसरे दर पे रखते हैं, या कोई टास्क है, उसके लिए रोबोटिक्स का रिप्लेसमेंट का बहुत ज्यादा स्कोप बढ़ गया है। और आगे आने वाले समय में तो रोबोटिक्स इस फील्ड में बहुत ज्यादा यूज होगा, और मोस्ट प्रोबेबली ये पॉसिबिलिटी ये निकल के आ रही है कि हो सकता है रोबोट जो लोग जब जाहिर सी बात सर हाई लेवल पर इसका प्रोडक्शन होगा तो इसकी कॉस्ट भी काफी कम हो जाएगी, और फिर क्या करेंगे कि इसको रेंट पे भी देना शुरू कर देंगे। और रेंट पे जैसे जाहिर सी बात है घर बनवाते समय हम जो चीजें रेंट पे आज इस्तेमाल करते हैं, पहले लोगों को बनवानी पड़ती थी, अब लेकिन लोग रेंट पे लेते हैं, इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद उसको बैक कर देते हैं। तो जो 500 रुपए उनको लेबर को देना पड़ता है, वो जाहिर सी बात है कि 300 रुपए में जब उनको लेबर दिन भर के लिए मिल जाएगा, तो वो फिजिकल लेबर की जगह वो रोबोटिक्स लेबर को यूज करना चाहेंगे, और इससे उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के जो हाउस है वो भी यूज हो जाएगी। तो एक चीज तो सर इसके रोबोटिक्स के जो फ्यूचर एप्लीकेशंस में ये समझ में आ रहा है कि आगे आने वाले समय में इसका वाइड स्प्रेड यूज हो सकता है। शादी वगैरह में भी जो हमारे मैरिज फंक्शंस होते हैं उसमें भी ये यूज होगा, जो हाउसेस का प्रोडक्शन पे हो, तो इतना वाइड स्प्रेड सर ये समझ लीजिए कि आगे आने वाले समय में लेबर मार्केट में या तो कोई एंटरप्रेन्योर होगा वही जज पाएगा, और अदरवाइज जो लेबर मार्केट की जो अनस्किल्ड लोग हैं उनको मार्केट में एग्जिस्ट करने में बहुत सर्वाइवल करना पड़ेगा। और बिल्कुल सही कहा। एक चीज, दूसरी चीज ये है कि सर आज मेडिकल साइंस में हमने वो भी चीज अभी कई दिन पहले पढ़ भी रहे थे, तो एक उसमें एक नया जो है मतलब रिजीम निकल के आया है कि दे आर स्टडीइंग द रिलेशनशिप बिटवीन द माइंड एंड द हार्ट। और वो ये मान के चल रहे हैं कि अभी तक हमारे मेडिकल साइंस क्या कहता था कि जो हमारे थिंकिंग का जो सेंटर पॉइंट है दैट इज द माइंड, बट नाउ अब उनका रिप्लेसमेंट कई अभी साइंटिस्ट सामने आए, उन्होंने ये भी कहा कि नहीं, अब हमारा वो जो थिंकिंग का जो सेंटर पॉइंट है वो माइंड ना होके जबकि हार्ट, और हार्ट से वो स्टार्टअप हो रहा है। तो इस पे सर आपका क्या व्यूज है? देखिए बहुत बढ़िया, आपने काफी चीजों को एनालाइज किया।